Respected members, the speaker for today, C. Akshat Baheti ji from Indore. First, I would like to welcome our chairman, C. Manish Kaushal ji, to just welcome all the members on today's CP meet on workshop on MS Excel. Here we start a session. We have a today 2-hour session on MS Excel practical workshop, which we shall learn. And I welcome C. Manish Kaushal ji to welcome all the members. Hi friends, so today we have the CP meetings of the MS on a MS Excel. The MS Excel is very powerful and useful tool that circumscribes the work done by all other applications of MS Office. It also provides with a certain advanced facilities like the data management with the help of the pivot table, macros, and Visual Basics. And most importantly, having sound knowledge of MS Excel enables us to perform our day-to-day task in a very concise and efficient manner. Today's speaker, Mr. Akshat Baheti ji, is very expertise knowledge in it, and he will illustrate the many other dimensions and tools. Please welcome Akshat Baheti ji. We welcome C. Akshat Baheti ji from Indore. Thank you, sir. I'll go with his profile, a brief profile of C. Akshat Baheti ji. He did his CA in May 2017. Further, he completed his DISA in December 2018. He is a proprietor of the firm AB & Company, which deals in GST audit and advisory, ERP consultation and implementation, direct taxation, financial advisory, and other related works like certifications and RERA. He also is looking after the marketing and strategy head of Career Amplification Institute at Indore, which is running courses for CA and CS and even school higher classes. He's also visiting faculty in this institute. He did his articles from JC Baheti and Associates Indore and Deloitte Haskins & Sells LLP Mumbai. He has vast experience in companies like Tata Consultancy Services, Simram Farms, IOB, Simfa Labs, and further other companies. He's handled various works regarding statutory audit, financial consultancy, and management work. Further, he has played a key role in providing session keynotes. He's also a motivational speaker and taken topics like Samadhan Setu. He's also a career and has given counseling at various organizations like Smart Sakhi Sangathan, Ramakrishna Mission, Millennium School, DPS, Alpine Groups of Schools, etc. Further, he's also presented papers in International Conference for CA students, Mega Seminar for CA students, and National Conference for CA students. He's also a technical trainer and has given his professional services for certified program in banking, finance, and insurance. Further, he has participated in various debates. Also, the most important thing, he's also signed an agreement with Taxman Publication for writing a book for them for the CA IPCC students. So hereby we welcome C. Akshat Baheti ji from Indore, and he'll be taking the topic. See, Excel we are studying maybe from the basics since when we were in schooling or somewhere when we were doing a graduation, but there are very little things which we can utilize in our daily day-to-day work also. So we will have an opportunity to learn from C. Akshat Baheti ji. It's a general practical workshop. So hereby we can also use a separate laptop or say a desktop, and he'll provide us or teach us the practical approach in MS Excel. So hereby we welcome C. Akshat Baheti ji. We welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you. I'm glad to be on this platform. Yeah, we welcome you, sir. I would request all the members to please be muted. All your queries, you can post it in the query chat box, which we are going to take it up in the last 15 to 20 minutes. So that would be much easier.
So hereby I request everyone to please keep yourself muted. We welcome you, sir. You can start your session. Thank you. I shall share the screen first, no? One second. This screen sharing. My screen is visible for the Excel. Am I Yes, audible? No? sir, it is visible. It is visible. Okay. Good afternoon and good evening to one and all present here. आप लोग सभी मुझसे सीनियर हैं या शायद हो सकता है कि मेरे बराबर के होंगे, because I am a very young member and from now onwards, due to many regulations imposed by regulatory authorities like NAFRA and everyone, like ROC is posting queries, SBI, SEBI is posting like what auditors are doing, what auditors have with them. Basically, we since last 2 years, when I was involved in the audits for listed companies and the private, major big private limited corporates, the major issue which I faced in every response is that we lack somewhere in the documentation process. First of all, we check everything, but we lack in some documentation process that we don't have with us. We had done the thing. So this thought came in my mind that whether doing the audit and conducting the audit through computers may lead us to have the workings with us, so as to support the SA 230 saying that documentation should be maintained by auditor as far as he can maintain, like for 7 years or 8 years, that he can support the workings. Now, in the conversation with the secretary, sir, the Sukesh ji, that MS Excel, people are knowing the things, but major issue which I faced while taking the seminars is we lack somewhere or the other practical implication. We know everything that the Excel can be used here and there. The functionality is like this. This is the formula. This is the formatting pattern. But somewhere or the other, we lack how to use that Excel in our day-to-day routine. So I will be focusing from basic that how the things can be done and our workings could be made efficient and effective. Am I audible, sir? Because I'm not getting any sound from there. Okay. Now the basic introduction sheet. Sir, excuse me, Akshat bhai. Actually, Yes. we have all muted our mics. Okay, okay, sir. We are just listening to you. Yes, you Okay. will not get, so that you cannot be interfered. That's Okay. why you are not receiving any response. Okay, okay, sir. So please continue. Okay, okay, sir. I would request everyone, the participants, that if you have the second laptop or you're using the laptop screen, so please open the sheet, or if you are not having any laptop or working sheet, so please carry some like a notepad or things, because I would be discussing the shortcut keys as well. How the things can be done faster enough in the offices. Otherwise, some people, I have seen many people using right clicks, using mouse for working the Excel, but when we start to work with MS Excel, we don't need any mouse for working in Excel. We rarely use the mouse for the Excel. Now, first, I would like to share the screen, basically the MS Office screen. Like this is 2003 version, and you are seeing like 2016 version. The basic screen everyone is aware of and everyone is friendly about is this screen. This is basically I am discussing because we will discuss further like in the names like this, like status bar, formula bar, name box. This is called name box. The highlighted things you are seeing on the screen. This is formula bar where you will see the formula. These are called ribbons: home, insert, page layout, formula. These are called ribbons. This will be like we are discussing the things in this manner. So like this, you can see the screen. One second, let me get it here. Yeah, this is a cell, active cell. This is column, this is row, and the intersection of and the selected cell is called active cell. मतलब the cell where we are working for. The cell के आसपास में ये जो बटन दिखता है छोटा सा, this square button is called fill handle. The main things I am getting. This is called name box. This is sheet tabs like this first introduction, shortcuts. These are sheet tabs names, and you can rename them. And I hope everyone is basically a bit comfortable. But मुझे बोला गया था कि I should take
the basics ताकि हमारे brush up हो जाए basic knows but for save as हम लोग हमेशा फाइल में जाके save as करते हैं. फिर उसके बाद हमें अगर नई वर्कबुक बनानी, if we want to create a new workbook, we should use Control N. Opening the another workbook, Control O you can use. Alt F4 for closing the workbooks. Control C for copy. Control X for cut. Control V for paste. Control Z for undo. And Control P for print. These are the basic. But the things goes on like we face issues like there are commas in some sheet. I will get you in detail. Like this formatting balance sheet that some are getting numbers like 2-digit decimals, कभी 2-digit नहीं आता है, फिर कभी commas आते हैं तो कभी commas नहीं आते हैं. Like we are typing 1000 over here and we are getting like 1000 dot 1000.00 and either we are writing 10,000 and we are getting like commas over here. So these doesn't look like aligned. मतलब ये एक साथ एक जैसे नहीं दिखते हैं. So there is a shortcut for formatting the things is Control+1. If you open the Control+1, you can press Control+1 from this now, and you will get to this kind of dialog box will appear in front of you. This is basically the format cell dialog box. Here you can format their number, what you have to show, like minus में ऐसे दिखाना है, you are using decimal, accounting, then symbol you can edit. Otherwise, the staff and students, the staff and the articles in our offices doesn't use this dialog box, and they used to format by using these like percentage, dollar sign, increase or decrease in decimal. But this doesn't provide you faster working. If you use this kind of thing, so this will provide you faster working and more efficient. Like pressing Control+1, you can set the alignment as well, font as well, borders as well, filling as well, and you can protect if this is not covering, this will not be covering here. So basically Control+1 will give you a holistic view to format a cell. Now Control T is also a major shortcut, like converting into table. Now people question me that ये तो table ही है, this is what? This is table. No, this is array. In Excel terms, there are two different things. One is table and one is array. Array ये normal चीज है, and अगर हम इसी चीज को अगर हम table convert करेंगे, तो we can see by pressing Control T. This is Control T for converting into table. Control T, and this dialog box will appear in front of you. And this basic you can please prompt me if I'm going fast. And why this is useful? Control T. First of all, you can format like alternate as in highlighted or not. You can see over here. Header row आप बनाना चाहते हैं अलग से या नहीं? Banded rows. See, this is a non-banded row, the basic thing. And if you use banded row, we'll get the alternative color in the like rows. One is light blue and another is white. Gives you more better presentation. First column you want to highlight, last column you want to highlight. Here you can insert slicer is also available. Slicer is basically a filter option. You can filter data by having over here. कि भाई ये हमें sample numbers के हिसाब से we want to filter. And this gives you better presentation. When we enter the field of chartered accountancy, our scope is not limited to only just auditing and compliance work. We need to give you value addition to the clients. तभी हम लोग like my father is also chartered accountant from 30 years. He is practicing, and he used to say me that if you are able to make him earn 10 rupees, then only you will get 1 rupee from him. So we need to make our presentation also good, because जो दिखता है आजकल वही बिकता है. So these functionalities are available at our tip points, that like you can filter data by clicking. You can just see the screen like 888. I just clicked and it filtered itself. From this, let me remove the slicer. Delete. This is basically design. Insert slicer. Like where you want to filter the data, you can say that we can filter data by using this functionality,
inserting table will automatically insert a filter on all the rows. So on the rows and columns. So you can use this, but this is not as good as presentation where slicer is showing itself like your sample numbers you want to filter, and this is okay. Then you can only press a button and you'll get the data in a dynamic form. This improves our presentation skills. Okay, like I am deleting this, delete, and where is it? Delete. Yeah, design. One second. This is design. Yeah. Here, these some functionalities like automatically summarization of pivot table without creation or without selection of range you can do. The basic is formatting. आप देखेंगे यहाँ पे you have very numerous kind of formatting options available. Like you can format table like this. This improves our presentation by converting into table. If you don't want to convert into table, then you can again convert it into ranges, like by pressing going into design ribbon and converting to ranges. So you can again get to the normal things which you were having. आप as it is आप देखेंगे ये banded rows छूट जाएंगी, ये सब हो जाएंगे, that will again convert into ranges. And if you want to, मतलब these are the shortcut which will improve our performance. Like अब formulas के अंदर आते हैं. We'll have a detailed study about the referencing as well. What kind of relating referencing, referencing using the absolute referencing or fixed referencing. But there are something like tab. When you insert a formula in MS Excel, like here, equal to sum is the basic formula we use. But then we press the enter button and this gives you the error like this, hashtag name. This means the formulas का name है ना, इसका syntax में गलती करा है. So we don't have to put enter. Instead of that, we do what? अभी enter से नहीं होता है तो हम लोग mouse ले जाके we click on this sum and get the things done like this. But इसकी जगह equal to sum अगर आप लिखते हैं and आप tab button दबाते हैं, so that automatically selects the formula equal to sum. If you want to go to sum if, sum product, sum if, any product, like you can navigate by using the arrow keys and then press the tab button. This will automatically select the formula which you were on. Then F4 is used for two things. When as far as considered in formula, it will be used for referencing. Like I will be going into the next sheet, this reference sheet, तब मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज. And second thing is for repeating the past action. हमने जो last time में किया है उसे वापस करने के लिए ये यूज होता है. अभी हम आगे देखेंगे ये कैसे यूज होगा. Then this control plus tilde. Tilde is a button above tab key and left side of the number 1 key. आप ऊपर देखेंगे कीबोर्ड में escape के नीचे tab के ऊपर एक ऐसा वो बना होगा slide this curvy dash type. It is used to show the formula. मतलब what the formula our staff has done. अभी बहुत बार होता है कि हमारे स्टाफ के सामने बैलेंस शीट आती है, वो उसे फीड अप करते हैं, फिर भी उनकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, P&L टैली नहीं होता है, बिकॉज देयर इज एन एरर ऑफ फॉर्मूला. तो हम कंट्रोल प्लस टिल्डा या फिर आप फॉर्मूलाज में जाके शो फॉर्मूलाज करके होता है. आप देखें फॉर्मूला रिबन में जाके या टैब में जाके आप शो फॉर्मूला दबाएंगे तो आपको दिखने लगेगा कि व्हाट द फॉर्मूला द पर्सन हैज एंटर्ड. मैं आगे दिखाऊंगा इसको कैसे यूज किया जा सकता है, पर इसका एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस टिल्डा. द टिल्डा इज द की, the curvy line, the curvy dash about tab key below the escape key. फिर आप देखेंगे the navigation में क्या होता है. We people are using this mouse key for going to the next sheet. People are using this scroll button for scrolling the sheet और ऐसा करने के लिए. but उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, ये सारे शॉर्टकट्स हैं. like for navigating from one sheet to the next sheet is control page down. अगली शीट पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन आप दबाएंगे, देखिए मेरा नेविगेशन चल रहा है. और अगर आपको वापस बैक जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप दबाएंगे तो यू विल हैव अ फास्टर वर्किंग. जितना कीबोर्ड यूज होगा एक्सेल में उतना फास्ट काम होगा. आप कंट्रोल एफ एंड कंट्रोल जी पीपल आर यूजिंग. कंट्रोल होम इज फॉर गोइंग टू दी ओरिजिन सेल. A1 पे जाने के लिए कंट्रोल होम यूज होता है और कंट्रोल एंड होता है शीट के अंदर जहां पे आखिरी सेल पे वर्किंग हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड. अगर आप इसके साथ साथ आप शिफ्ट भी यूज करेंगे तो दैट विल स्टार्ट सिलेक्टिंग.
इफ यू वांट टू सिलेक्ट टिल होम तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाइए और होम दबाएंगे तो वो पूरा सिलेक्ट कर देगा होम तक। अगर आप यहाँ पे हैं, देखिए आप यहाँ पे हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आप एंड दबाएंगे तो वो एंड तक जाके सिलेक्ट कर देगा। कंट्रोल इज यूज्ड फॉर नेविगेशन, शिफ्ट इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज होगा तो वो दोनों काम करेगा, नेविगेट भी करेगा और सिलेक्ट भी करते जाएगा। देखिए आप हम यहाँ पे थे नेविगेशन वाले फॉर्मूले में, कंट्रोल होम कंट्रोल एंड भी हो जाएगा। फिर आप कंट्रोल F पीपल आर यूजिंग, कंट्रोल पेज डाउन इज फॉर कंट्रोल शिफ्टिंग फ्रॉम वन शीट टू नेक्स्ट शीट एंड गेटिंग बैक इज कंट्रोल पेज अप, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ डेटा के साथ हम शिफ्ट यूज करेंगे, कंट्रोल A एवरीबॉडी इज यूजिंग फॉर सिलेक्ट ऑल। फिर आप उसके साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने होम भी करके बताया था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने एंड भी करके बताया था। हाँ, पर क्या होता है जब हमें पूरा रो या कॉलम सिलेक्ट करना होता है ना, तो पीपल यूज माउस एंड क्लिक ऑन सी कॉलम। इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ सी कॉलम यू विल यूज माउस एंड क्लिक ऑन दिस सी एंड देन यू विल सिलेक्ट। इसकी बजाय आप लोग क्या कर सकते हैं, देयर आर टू शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस स्पेस बार फॉर सिलेक्शन ऑफ रो, फॉर सिलेक्शन ऑफ कॉलम, एंड शिफ्ट और स्पेस बार फॉर सिलेक्शन ऑफ वन रो। तो दिस विल फास्टन अप योर वर्किंग। बाकी इसमें मैंने डिटेल अटैच करी है, वी शुड स्टेप फॉरवर्ड। नाउ रेफरेंसिंग यही मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम आगे जाएंगे और कुछ कुछ फॉर्मूलाज को देखने लगेंगे या कुछ भी हम इंसर्ट करेंगे तो रेफरेंसिंग इज मस्ट। देयर आर थ्री काइंड ऑफ रेफरेंसिंग, देयर आर थ्री काइंड ऑफ रेफरेंसिंग अवेलेबल। वन इज रिलेटिव वाली, रिलेटिव रेफरेंसिंग, second is absolute referencing, and third is mixed referencing. What these three are, relative मतलब अगर आज आप यहाँ पे इस सेल को रेफर किया है इस सेल से, if you are referring from this cell to this cell, ठीक है, if you will move relatively from this cell by one cell तो वो रेफरेंसिंग भी अपने आप नीचे आ जाएगी। अगर आप राइट में जाएंगे, अगर आप देखिए लेफ्ट में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव। ये कब काम आ सकती है और कब काम नहीं आ सकती है। दिस इज नॉट यूजफुल व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ रेंज। इस रेंज के अंदर आपको अगर ढूंढना है, खासतौर से फॉर्मूलाज लाइक वी लुकअप, सम इफ, यहाँ पे आप एक क्राइटेरिया देते हैं कि इस रेंज में से आपको ये ढूंढनी है। तो क्या होगा, अगर आप अगले सेल में कॉपी करेंगे तो वो क्या होगा, वो अगले सेल से रेंज स्टार्ट करेगा ढूंढना। तो नॉट यूजफुल देयर व्हेन यू हैव टू डिफाइन रेंज, हैव फिक्स्ड सेल कि अगर ये सेल पे ही देना है या नहीं देना है। और रिलेटिव रेफरेंसिंग ही हम मेजरली यूज करते हैं। हम अगर इसमें वर्कशीट देखें तो आप ये देखें, अभी यहाँ पे ये मैंने डाल रखा है, आप इसको डिलीट कर दें, सैंपल नंबर्स 2। एवरीबडी कनेक्टेड, मतलब सभी लोग यहाँ तक हैं मेरे साथ, एंड एवरीबडी इज गेटिंग थिंग्स। फास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। लाइक सैंपल नंबर्स में अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें इस शीट से इधर लेना है, तो सिंपल है, अगर रिलेटिव रेफरेंसिंग का इंडेक्स है इज इक्वल टू और ये रेफर कर दिया, आप कीज का भी यूज कर सकते हैं, इक्वल टू लेफ्ट साइड यहाँ दिया। अब आपको अगर यहाँ पे सारा डेटा एज इट इज का चाहिए कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से रिलेटिवली पोजीशन चेंज हो गई है, रिलेटिवली पोजीशन चेंज हो गई है। ये कहाँ कहाँ यूज आता है ये आप देखिए, सेकंड एक्सरसाइज मैंने बनाई है। लाइक देयर इज अ डिस्क अमाउंट गिवन, दीज आर द क्लाइंट नेम्स, और इनका हमें सेल्स अमाउंट, हमने इतना बिलिंग इनको किया है बट इतना हमने इनको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट इज नॉट फिक्स्ड फॉर एवरीवन, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई डिफरेंट थिंग्स, लाइक दिस सेल शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड गिवन हियर, और यहाँ पे अगले वाले में उसके अपने अपने अमाउंट मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब ये यहाँ पे यूज होता है। अब देखें कैसे होगा, इज इक्वल्स टू से कोई भी फॉर्मूला चालू होता है, आपने इज इक्वल्स टू लगाया, आप सेल्स अमाउंट पे जाएंगे, आपने इसको रेफर किया कि भैया इस अमाउंट को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस अमाउंट से, ठीक है। एवरीबडी इज इट विजिबल, मतलब मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। इज इक्वल्स टू
this amount shall be multiplied by this amount. Okay, ये आ गया. अब क्या होगा, हम हर सेल पे जा जाके बार बार लगाएंगे तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग. तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे. अब देखिए मैंने आपको नेविगेशन करना सिखाया है. अब देखें, अब आप क्या, अभी होता क्या है, हम लोग दबाते जाते हैं, सिलेक्ट करते जाते हैं, देन विल पेस्ट. बट दिस इज नॉट द वे वी शुड डू. अभी क्या करना होगा हमें, आपको मैंने आपको बताया कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो की दबाएंगे तो आप नेक्स्ट ब्लैंक आ जाएंगे. मतलब यहां से यहां तक जो लिखा है, अगर बीच में ब्लैंक नहीं होगा तो वो वहां तक आ जाएगा, शार्प हो जाएगा. ब्लैंक को यहां से यहां तक के बीच के सारे सेल्स तक नेविगेट हो जाएगा और जहां तक नेक्स्ट ब्लैंक है वहां तक आ जाएगा. विल राइट 4% अगेन. नाउ विल डू व्हाट, विल डू कंट्रोल सी. ठीक है, लेफ्ट साइड, देन कंट्रोल के साथ शिफ्ट. अब हमें सिलेक्ट करना है नीचे से ऊपर तक, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट एंड देन विल सिलेक्ट अप टू टॉप. फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल वी इज रिलेटिव रेफरेंसिंग. आपकी रेफरेंसिंग चेंज हो रही है. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, फिक्स्ड रेफरेंस में. रिलेटिव रेफरेंसिंग इज वेरी इजी. अब क्या हो रहा है, सभी हमने 5% डिस्काउंट दिया है, तो अभी क्या होगा, हमारा बंदा या तो 5% सब जगह लिखे और इस टाइप का फॉर्मूला बनाए, दैट विल बी नॉट, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा ना. तो क्या होता है, इसी के अंदर आप देखें एक एब्सोल्यूट टाइम लिमिटेड में, तो इसीलिए चल रहा हूं. तो एक्सेल डिनोट करता है कि आपका रेफरेंसिंग फिक्स हो गया है, इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट. ठीक है, अगर आप ऐसा करके यहां से कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो भी है. क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल टिल्डा दबा के आप देखें शो फॉर्मूला होगा. मैंने आपको अभी बताया था, आप फॉर्मूले यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा था, यहाँ तो आ गया, पर ये वाला अमाउंट इसमें इस सेल में क्या हो रहा है, दिस अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस. B47 इज मल्टीप्लाइड बाय अगेन नेक्स्ट अमाउंट, क्योंकि आपने रिलेटिव रेफरेंसिंग दिया है. वो नीचे खसकते जा रहा है तो ऊपर का रेफरेंसिंग भी नीचे खसक रहा है. आप कंट्रोल प्लस टिल्डा वापस दबाएंगे तो शो फॉर्मूला हट के वापस नॉर्मल हो जाएगा. तो अभी इस केस में हमें क्या करना चाहिए, इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट एंड यू हैव टू प्रेस F4 की. आप F4 की जैसे ही दबाएंगे तो आपके सामने दोनों डॉलर साइन आने लग जाएंगे. देखिए सी के आगे डॉलर आ गया, मतलब कॉलम में कॉपी पेस्ट नीचे तक करेंगे, तब आप नहीं, वो अमाउंट मल्टीप्लाई होके हर जगह वहीं आएगा. आप F2 से देखेंगे तो आप क्लियर टू एवरीवन, थोड़ा कनेक्टेड है सभी लोग. बहुत बेसिक से मैं चालू कर रहा हूं, बिकॉज उसके आगे जो चीजें आएंगी उसमें ये सारी चीजों को मुझे रेफर करना पड़ेगा. दिस इज जस्ट अ बेसिक भूमिका बना रहा हूं. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आपको ये समझ आ रहा है? फिर रिलेटिव रेफरेंस में कब कहाँ यूज करना है, कि हमें रेट INR का $1 रेट है 59 and these are the rupees amount of हमारी conversion rate and you have to paste it over here. भाई सिंगल अगर एक जगह करेंगे तो ये वैसे कैसे पेस्ट हो सकता है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ. क्योंकि इस सेल को हमें फिक्स करने का है और दूसरे वाले सेल को हमको रिलेटिव रखना है. जैसे नीचे जाएंगे तो वो सेल बदलते जाना है. आप देखेंगे कंट्रोल सी करेंगे और आप यह देखें कंट्रोल वी कर रखा. तो ये क्या आ गया, ये आपके कन्वर्टेड आ गया 7100. आप लोग हैंड ऑन ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, मतलब जो चल रहा है एक बार कर करके देखते जाइएगा आप. एंड द वर्कशीट आई हैव अटैच्ड कि आपको कैसे काम, मतलब अगर आपको 2-3 वर्कशीट्स मैंने बना के दी हैं, क्या आप नीचे कभी आप अगर आगे पीछे यूज करना चाहें तो यू विल बी एबल टू यूज. अब इसका यूज कहाँ आता है, देखिए हमारे पास मेजरली जो क्लाइंट होता है जिनका हम ऑडिट करते हैं उनका डेटा टैली से आता है. ठीक है, टैली से आता है, डे बुक भी निकल आती है टैली से और जनरल एंट्रीज भी सारी लिस्ट वाइज निकल आती है. आप देखें
अगर आपके पास लाइसेंस्ड वर्जन ऑफ टैली है तो कंडेंस्ड डे बुक इस प्रकार का, और डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब क्या हो सकता है, हम यहाँ पे सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, वी कैन इंसर्ट यूजिंग MUS शीट। मैंने मेरे ऑफिस में MUS शीट, मल्टी यूनिट सैम्पलिंग शीट बना रखा है, जिसमें रिलेटिव उसकी वैल्यूज के हिसाब से सैंपल निकलता है, और हम लोग इस सैंपल शीट को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है, कंडेंस्ड वाली ये वाली शीट और डिटेल्ड वाली ये वाली शीट, देखिए आप, ये दोनों लाइसेंस वर्जन ऑफ टैली से निकलती है। एंड मेजरली हमारे जो सीएस होते हैं, बहुत सारे सीएस के यहाँ पे लाइसेंस्ड वर्जन अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज वी डोंट डू अकाउंटिंग। तो हम लोग लाइसेंस वर्जन परचेज नहीं करते हैं। हम लोगों के यहाँ एजुकेशनल मोड पे ही काम होता है, और एजुकेशनल मोड से एक्सेल में अगर आप निकालना प्रयास करेंगे तो वहां पे जो ये डेट्स है ना 1, 2 और 31 के अलावा बाकी सब जगह एजुकेशनल लिखा आने लग जाएगा। तब हमें क्या करना होगा, हमें डे बुक को एज एन HTML फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सेल में खोलना होगा। HTML फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके फाइल नेम लगाना होगा, लाइक daybook.xls। आप टैली की कुछ अगर स्क्रीन इमेजिन कर पा रहे होंगे, तो टैली के अंदर होता यह है कि आप जब एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो वो फाइल फॉर्मेट पूछता है, तो वहां पे हम HTML सिलेक्ट करेंगे, जहां फाइल नेम पूछेगा वहां पे फाइल नेम .xls याद से लिखेंगे, .html नहीं लिखेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की शीट आएगी। और ये शीट किसी काम की नहीं है अगर हमारे ऑडिट पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो। अब इस ऑडिट शीट को हमें काम के लिए बनाना है, काम के लायक बनाना है, तो वो मैं सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप देखें, डिटेल्ड टैली की शीट आती है ऐसी, जो लाइसेंस्ड वर्जन होता है। ये डेबिट क्रेडिट केवल दिखते हैं, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की वैल्यू पे क्रेडिट होता नहीं है। तो अगर आप इस डेटा शीट को करना चाहते हैं तो इसे फॉर्मेट करते हैं। आइए सभी लोग एक बार सिस्टम पे इस शीट तक आ जाए, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, एक बार सभी लोग इस शीट को ओपन कर लें, क्योंकि बहुत सारे मैंने मतलब एक्चुअली मेरे ऑफिस में भी मैंने लाइसेंस अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि हमें डेटा मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। 1-2 सेमिनार्स में सुन रहा था, मतलब गिरीश आहूजा जी के, और एक बार सेमिनार्स हुए थे तो उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर आपके यहाँ से डेटा मॉडिफाइड हुआ है तो आपका मैक नंबर उसके अंदर आ जाता है। एंड इफ योर क्लाइंट गेट सर्वेड और कुछ भी अगर उसके यहाँ क्वेरी निकलती है, और अगर आईटी इंजीनियर बैठता है, तो वहां पता चल जाता है कि ये ऑडिटर के सिस्टम चेंज हुआ है या किस मशीन आईडी से चेंज हुआ है, और वो मशीन आईडी पकड़ में आ जाता है। तो मेरा हमेशा आप लोगों को एक ही कहना रहेगा, अगर आप क्लाइंट के डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी एंट्री चेंज करवाएं तो उनके सिस्टम को बुलवा के सामने बिठवा के करा दें, पर आपके सिस्टम से ना करें। इसी कारण से मैंने लाइसेंस वर्जन परचेज अभी तक नहीं कर रखा है। एंड वी आर वर्किंग थ्रू एजुकेशनल मोड एंड वी आर हैविंग क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन विद अस। अब आप मेरे हिसाब से सभी लोगों ने ये शीट खोल ली होगी। सुकेश जी, शैल आई कंटिन्यू? मैं कंटिन्यू करूं? ओके। अब आप देखें, हम लोग शॉर्टकट कीज बिना इस माउस को हिलाए वील फॉर्मेट द थिंग्स। सबसे इजी मैटर है शॉर्टकट्स बनाना। बोले सर हमें शॉर्टकट याद करना पड़े, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप देखें आपके कीबोर्ड में ऑल्ट बटन होगा, ALT बटन दबाइए, आपके सामने यहाँ दिख जाएगा कि आपको करना क्या है। आपको मालूम है कि होम टैब में जाके मुझे फॉर्मेटिंग की चीजें मिलती है। आप देखें होम में जाके हमें फॉर्मेटिंग है। अब आप देखें, अगर आपको किसी को भी बताना है, अपने स्टाफ को ट्रेन करना है, तो ट्रेन देम लाइक दिस। आप ऑल्ट बटन दबाएं। ऑल्ट बटन दबाने के बाद आपको होम में जाना है, तो क्या दिख रहा है? H दिख रहा है। तो आप क्या दबाएंगे? H दबाएं। H दिख रहा है। फिर उसके बाद आप एरो की से नेविगेट करके नो फिल कर सकते हैं, या फिर नो। एम आई क्लियर टू एवरीवन? हम वापस से समझते हैं। कोई भी शॉर्टकट बनाना है या किसी को ट्रेन करना है कि आप ये शॉर्टकट कैसे बनाएं, तो आप सबसे पहले ऑल्ट की दबाएं।
आपको जिस भी टैब में नेविगेट करना है उस टैब के आगे जाएगा H दबाना है, फिर आप दबाना है, ये M दबाया, एंड देन यू विल गेट मर्ज करना है, अनमर्ज करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है, और उसके आगे उसके रिस्पेक्टिव थिंग्स दिख जाएंगे। ऐसा करने से याद हो जाएगा, कब होगा, जब आप बार बार डेली रूटीन में से रिवाइज करते हैं। अब देखें, हम लोग होम दबाते हैं, हम लोग आ गए ओरिजिन, शॉर्टकट बताया हुआ है कंट्रोल होम। कंट्रोल ए से क्या होगा, एक बार में वो एक डेटा सेल सिलेक्ट करता है जिसके आगे बहुत सारे ब्लैंक्स होते हैं, वहां तक सिलेक्ट करता है, फिर उसके बाद में वो पूरा सिलेक्ट करता है। नाउ वी हैव टू अनकलर इट, वी हैव टू अनकलर। क्या होगा अनकलर के लिए, H दबाया और N दबाया। अब क्या हुआ, आपके सामने पूरा क्लीन हो गया। अब आपको क्या लग रहा है, भाई इसमें बॉर्डर नहीं है, Alt H। देखिए आप सब स्क्रीन पे देखिए मेरे साथ, ऑल्ट दबाया मैंने, होम बटन दबाया, क्योंकि बॉर्डर्स कहां है, हेलो सभी लोग यहाँ तक मैं, हाँ हेलो। जी, एक्चुअली आपकी आवाज़ जो है ना वो कट रही है थोड़ी, तो शायद आपका लैपटॉप और मोबाइल पास में रखा हुआ है। हाँ ये हो सकता है, मैं थोड़ा दूर कर सा, देता हूँ। हाँ जी हाँ, प्लीज विल कंटिन्यू। संतोष दरवाजा खोल दो बेटा। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा अभी ठीक है, दरवाजा खोल देता कि नेटवर्क का इशू भी नहीं रहेगा। चलिए हम वापस करते हैं, ऑल्ट, यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल ए तक सभी लोगों ने, अगर नहीं करा है तो वापस से आप कंट्रोल होम दबा दें, उसके बाद आप कंट्रोल ए करिए, फिर ए करेंगे तो आप वापस सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ यू नीड टू पुट द बॉर्डर्स एंड यू नो, आपको मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है शॉर्टकट, आप केवल कीबोर्ड से आप कर सकते हैं। ऑल्ट दबाइए, आपको होम में जाना है, एच दबाइए, बॉर्डर्स के लिए बी दबाइए, और आपको दिख रहा है ऑल बॉर्डर्स लगाना है। फर्स्ट 2-3 बार करने में आपको थोड़ा सा लगेगा यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, माउस से कर लूं, और एक बार आपको आदत लग जाएगी तो आप इसी को यूज करेंगे। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है यार बहुत सारे मर्ज हैं सेल, बीच बीच में कुछ आ रही है, बॉर्डर्स ढंग से नहीं आ रही है, तो यू नीड टू अनमर्ज ऑल। मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सीएस, मैं आपको फिर बताता हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट बहुत प्रैक्टिकल है, मैं थियोरेटिकल नहीं सिखाना चाहता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हम लोग बहुत सारे, ये जो टैक्स ऑडिट होता है, जब हम फॉर्म 3CD भरते हैं तो बहुत सारे लोग ये क्वालिफिकेशन लगा देते हैं कि हम मोर देन 10,000 की चेकिंग नहीं कर पाए हैं, मोर देन 2 लाख की चेकिंग नहीं कर पाए हैं। अब भाई सरकार बोल रही है कि हमने आपको बोला है कि आपको चेकिंग करके बताना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, और हम क्या बोलते हैं कि हम डेटा इतना था या ये सब था, इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था तो हम नहीं कर पाए, एंड वी आर गिविंग अ सब्जेक्ट टू ओपिनियन टू दिस। तो ये क्या होगा, हमारे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में आएगा। दूसरी चीज, आप क्यों नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पा रहे हैं जबकि बहुत आसान है, ये मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आप मेजरली जो डेटा आएगा वो कैश बुक निकालेंगे या बैंक बुक निकालेंगे तो वो टैली से निकलेगी, वो इसी फॉर्मेट में निकलेगी, और आपको उसको बार बार आपको उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो आज का उद्देश्य है वो यही है कि हमारी प्रेजेंटेशन को हम कैसे ध्यान में रखें और हमारी चेकिंग को हम कैसे कर पाए। क्या यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, सभी मेरे साथ हैं अभी यहाँ तक? चलें अब हम आगे चलते हैं। इसको अनमर्ज करना है। अब दिख रहा है कि यार ये सही नहीं है, देखें आप ये रो नंबर 5 देखिए कैसी मर्ज आ रही है, 7 कैसी आ रही है, 9 कैसी आ रही है, मजा नहीं आ रहा है कुछ। तो क्या करें, अनमर्ज कर देंगे सारे सेल्स को। वापस क्या होगा, ऑल्ट दबाना है, होम पे जाना है तो एच दबाना है, मर्ज के लिए एम दबाना है, और अनमर्ज के लिए यू दबाना है। अब देखिए आप सब कुछ अनमर्ज हो गया है, सब कुछ अनमर्ज हो गया है। ठीक है, चलिए अभी ये ठीक दिख रहा है थोड़ा, पर अभी भी क्या हो रहा है यार अक्षत, देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ डेबिट आ रहा है, डीआर लिखा हुआ, पर डेबिट में डेबिट नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद बीच बीच में बहुत सारे कॉलम्स छूट रहे हैं, ये मजा नहीं आ रहा है। तो क्या कीजिए, डिलीट कर दीजिए जो कॉलम आपके काम के नहीं दिख रहे हैं, आपको डेटा नहीं दिख रहा है इसके अंदर, जैसे आपको इसमें डेटा नहीं दिख रहा है, अरे नीचे हुआ तो मैंने आपको फिर सिखाया है, नेक्स्ट ब्लैंक तक जंप करने के लिए कंट्रोल का यूज करें एरो कीज के साथ। अब हमें नीचे जाना है बिल्कुल, तो कंट्रोल दबाते हुए नीचे का एरो की दबाइए, देखिए शीट के लास्ट में पहुंच गया। एक्सेल में इससे ज्यादा रोज नहीं होती हैं, तो कंट्रोल दबा के वापस ऊपर आने के लिए कंट्रोल अप एरो की,
नीचे जाने के लिए कंट्रोल डाउन एरो की, राइट साइड में जाने के लिए कंट्रोल राइट एरो की, लेफ्ट एरो की। अब इसे डिलीट करना है अक्षत, फिर राइट क्लिक करके डिलीट करें? नहीं, क्या करना है, ऑल्ट दबाइए। आपको दिख रहा है डिलीट सेल्स कहाँ पे हैं, होम टैब में है। ऑल्ट दबाया, होम में गए, डिलीट के नीचे दिख रहा है डी, तो हम डी दबाएंगे। फिर डी के नीचे क्या दिख रहा है, क्या करना है, सेल डिलीट करना है, रो डिलीट करना है, कॉलम कॉलम करना है, तो सी। अब आप अगर एक बार मन में गाना गाएंगे ना डिलीट करने के लिए, ऑल्ट एच डी सी, तो अपने स्टाफ को ट्रेन करने में भी इजी होता है, उनकी स्पीड फास्ट हो जाती है और जो उनका ऑडिट की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। सेम थिंग सी के लिए, सी कॉलम में देखें ऊपर नीचे जाके कुछ भी नहीं है। अब आप बोलेंगे क्या बार बार मेरे को ऑल्ट एच डी सी दबाना है? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि आप F4 से रिपीटेटिव टास्क को बार बार कर सकते हैं। अब आपको केवल F4 की दबाना है और देखिए कॉलम डिलीट हो गया। अगर आपको एक काम किया हुआ है और उसको बार बार करना है तो उसके लिए आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल F4 की दबाना है। F4 के दो यूज हैं, रिलेटिव को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना, एब्सोल्यूट को रिलेटिव में कन्वर्ट करना। एक तो ये हो गया जो हमने फॉर्मूलाज में सीखा था, दूसरा है रिपीटेटिव एक्शन को वापस करना। ई कॉलम में चेक करना है भाई, कंट्रोल से नीचे का एरो की दबाया, नहीं है कुछ भी, अप एरो की दबाया वापस, और क्या करा, F4 कर दिया। सेम थिंग फॉर एफ, एफ में भी यही है, आप देखें, करते चलिए मेरे साथ। फिर वापस ये करके देखा, ये भी खत्म करा। अब आप देखें जी कॉलम भी खाली है, यहाँ भी उड़ा दिया, ये भी खाली है। डेबिट यहाँ दिख रहा है, मतलब यहाँ अमाउंट्स होंगे। एच वाले में आप देखेंगे कंट्रोल डाउन एरो की दबाया, F4 दबाया। मैं आपके सामने बार बार ऑल्ट एच डी सी नहीं चला रहा हूँ, आप देखिए मेरी स्पीड कितनी फास्ट हो रही है, ये F4 दबा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ भाई अक्षर, देखो अभी भी क्या है, जनरल एंट्री जैसे दिख नहीं रही है। पर्टिकुलर एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है। डेबिट में डेबिट इधर आना चाहिए, चलो क्रेडिट तो सही है, तो डेबिट का डेबिट में आना चाहिए। सर हम यही तो सीखने आए हैं। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना होगा, फिल्टर का यूज करना होगा। मैं आपको फिल्टर सिखा रहा हूँ। आप देखिए, आपको फिल्टर करना है डेटा, किसको करना है, जितना सिलेक्टेड है। तो आप क्या दबाएंगे, मैंने आपको बताया एंड तक नेविगेट करने के लिए कंट्रोल एंड, पर अगर आपको एंड तक सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड। फिर आपको फिल्टर लगाना है, तो लोग क्या करते हैं, डाटा में जाते हैं और फिल्टर पर दबाते हैं, ये नहीं होता। इसका शॉर्टकट होते हैं, 3 शॉर्टकट है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको सबसे इजी बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल, आप लिख लीजिए कंट्रोल शिफ्ट एल। अरे अक्षत ये तो वैसे भी कर सकते हैं ना, ऑल्ट दबा के, हाँ कर सकते हैं। देखिए ऑल्ट दबाया, फिल्टर कहाँ आता है, डेटा में आता है, डेटा में आता है, ये देखिए ए दिख रहा है, डेटा के अंदर ए दिख रहा है, डेटा पे जाने के लिए, तो ए दबाया। अब क्या दिखा रहा है, फिल्टर के नीचे टी दिखा रहा है, तो आप क्या दबा देंगे, ऑल्ट ए टी, तो इससे भी काम हो जाएगा, ऑल्ट ए टी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब उसके बाद क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि भाई यहाँ जो आ रहा है, मतलब यहाँ जो आ रहा है इसके इधर खाली है और इसके इधर खाली है, तो हम इन दोनों को एक कर सकते हैं, या जनरल एंट्री जैसी आए। बिकॉज हमारे एज एन ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी होती है चेक करना कि एंट्री भी सही पास हुई है या नहीं हुई है, पर हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि हमने कौन सी एंट्री चेक करी थी। आपके साथ मतलब मैं ब्रांच के साथ अपनी डॉक्यूमेंटेशन शीट भी शेयर करूंगा, जिसमें क्या होगा, मेरे डॉक्यूमेंटेशन शीट अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें ऐसा होता है, यहाँ जनरल एंट्री लिखी होती है पूरी, और उसके नीचे मेरे स्टाफ की वर्किंग होती है कि इस जनरल एंट्री को मैंने चेक किया है, इसकी सपोर्टिंग्स को मैंने चेक किया है, उसमें सपोर्टिंग्स में मेरे 2 3 4 जो डॉक्यूमेंट थे वो ये सारे मेंशन करता है वो। और उसके बाद क्या होता है, वो एक पूरी जनरल एंट्री, क्योंकि हमें सैंपलिंग करना होता है, हमें ऐसे 200 भाई हमारे यहाँ सैंपलिंग के लिए जो ऐसे बने गए हैं, ऐसे 520 है या 530 है, ऐसा कोई सा है, तो आप उस ऐसे के तहत आप सैंपलिंग पे काम कर सकते हैं। पर सैंपलिंग जो होनी चाहिए उसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ पे बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये चीज मुझे पीयर रिव्यू में सीखने में आई थी। जब हमारा पीयर रिव्यू हुआ था तो पीयर रिव्यू में जो इनपुट्स मिले थे वो ये थे। अब आप देखें, आप इसमें एक कॉमन चीज देखें कि अगर कुछ चीज यहाँ पे लिखी तो उसके लेफ्ट साइड वाला सेल खाली, और अगर राइट में लिखी तो लेफ्ट वाला खाली है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत सारी जगह यूज आ सकता है, ये मेरे पास सैंपल डेटा अवेलेबल था, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को एक में करना है। अब क्या होगा, पर्टिकुलर्स के अंदर सारे आना चाहिए, तो भाई मुझे ये वाले कॉलम को खोलना है, तो फिल्टर खोलने के लिए लोग फिर माउस यूज कर सकते हैं और यहाँ एरो पे जाके बटन दबाते हैं, पर ऐसा हम नहीं करेंगे। फिल्टर को खोलने के लिए आपको ऑल्ट दबा के डाउन एरो की करना है, करके देखिए, उसी सेल पे जाइए जहां फिल्टर का एरो दिख रहा है, लाइक दिस वाला,
फिर आप ऑल्ट का डाउन एरो की दबाइए तो फिल्टर खुल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, भाई मुझे ये जो लिखे हुए हैं केवल ये चाहिए, ब्लैंक सेल्स नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ऑल्ट दबा के डाउन एरो की करेंगे, फिर सिलेक्ट ऑल की रहने देंगे, और सबसे नीचे जाने के लिए क्या दबाएंगे, एंड बटन दबाएंगे, END बटन होगा आपके इसमें, और ब्लैंक्स को अनचेक कर देंगे, अनचेक कर देंगे, मतलब ब्लैंक्स के अलावा सारे आ जाएं। तो ब्लैंक्स के अलावा आ जाएंगे आपके सारे। सभी लोग मेरे साथ हैं, फास्ट तो नहीं हो रहा है कहीं? अब क्या होगा, बोले भाई इसको इधर करना है तो कॉपी पेस्ट कर दूं क्या? कॉपी पेस्ट करने में होगा नहीं, क्योंकि ये फिल्टर्ड डेटा है। आप देखिए ये डेटा फिल्टर है, 11 के बाद 14 है, 14 में 17 है, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 है, एंड सो ऑन। मतलब डेटा इज नॉट, तो ये पेस्ट होगा नहीं, डेटा एक पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं है, फिल्टर डेटा है। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रेफरेंसिंग। भाई इस सेल में इस सेल का डेटा आ जाए, मतलब जो डेटा इस सेल में लिखा हो वो इसमें आ जाए। क्या होगा, रिलेटिव रेफरेंसिंग इज इक्वल टू दिस। तो आप देखेंगे यहाँ पे फेडरल बैंक अकाउंट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अक्षर अब तो सिंपल है, कॉपी करा, दबा के डाउन एरो की करेंगे तो सबसे नीचे तक आ जाएंगे। फिर राइट में आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की दबाएंगे, अब पेस्ट कर देंगे। और ऐसे केसेस में आपको ऑल्ट कोलन यूज करना चाहिए, ऑल्ट के साथ कोलन आप लिख लीजिए, क्योंकि मेरे साथ धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आएंगी। ऑल्ट कोलन दबाने से क्या होता है कि आपका रेंज में जो सिलेक्ट करा है उसके सेल्स सिलेक्ट हो जाते हैं। ऑल्ट कोलन दबाने से जो रेंज होती है उसके सेल्स सिलेक्ट हो जाते हैं। नाउ यू विल पेस्ट कंट्रोल V, अब देखें हो गया है। अब आप इधर से क्लियर फिल्टर करना चाहते हैं तो क्या होगा, वापस ऑल्ट दबा के खोलेंगे और क्लियर फिल्टर। अब आप देखेंगे, सर देखिए जनरल एंट्रीज कैसी दिख रही है। अब आपको ये कॉलम अगर मैं हाइड भी कर दूंगा तो आप इस कॉलम को इग्नोर करते हुए इस कॉलम को देखेंगे तो दिख जाएगा डेबिट क्या हुआ है और क्रेडिट क्या हुआ है। अब क्या होगा, अगर आप इसको डिलीट कर देंगे ना तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि आपने रेफरेंसिंग कर रखा था। तो अब आपको क्या करना होगा, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके इसको पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। पेस्ट स्पेशल इज ऑल्सो यूजफुल टूल। फॉर्मूला से लगे हुए नंबर्स को नंबर में कन्वर्ट करना बहुत सारी चीजों में काम आता है। आप देखिए, अब पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सी पे जाके माउस नहीं यूज करना है, आपको कंट्रोल और स्पेस बार यूज करना है। मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया है, दैट इज वेरी फास्ट। कंट्रोल C करा, पेस्ट स्पेशल करने के लिए आपके पास होम टैब में जाके पेस्ट के अंदर जाके ये सारी चीजें हैं, पेस्ट स्पेशल। इसकी जगह शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्ट V। कंट्रोल V पेस्ट के लिए होता है, स्पेशल के लिए कंट्रोल ऑल्ट V। ऐसा विंडो आपके सामने खुलेगा, पेस्ट स्पेशल का विंडो कंट्रोल ऑल्ट V से खुलता है। अब आप क्या चाहते हैं, भाई इसको कॉपी करे हुए को एज इट इज पेस्ट करना है, या इसके फॉर्मूला पेस्ट करना है, या जो फॉर्मूला से वैल्यूज निकल के आएंगे वैल्यूज पेस्ट करना है, भाई इस जो सेल के फॉर्मेट्स हैं वो पेस्ट करना है, कमेंट्स पेस्ट करना है, भाई ये जो सेल सिलेक्ट कर रहा है इसकी विड्थ पेस्ट करना है। कितनी बार हम बैलेंस शीट बनाते हैं जो टी शेप वाली होती है, उनके अलाइनमेंट प्रॉपर ही नहीं होते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, मतलब लाइबिलिटी साइड की जो बैलेंस शीट होती है वो थोड़ी लंबी होती है, कभी एसेट वाली छोटी हो जाती है, विड्थ सेम नहीं होती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, भाई हमने जो विड्थ कॉपी करी, फिर जहां जाके पेस्ट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट V करेंगे, फिर उसमें क्या कर देंगे, कॉलम विड्थ। भाई हमको कॉलम में कुछ भी नहीं चाहिए, केवल उसकी विड्थ पेस्ट कर दीजिए, तो आप विड्थ भी पेस्ट कर सकते हैं। अब इस केस में क्या करना है भैया, जो फॉर्मूला से वैल्यूज आई हैं हमें उन्हें पेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पे क्लिक करवा के ओके कर देंगे। अब आप इस कॉलम को डिलीट भी कर देंगे। देखिए डिलीट करना है तो फिर क्या होगा, कॉलम पूरा सिलेक्ट करा, कंट्रोल माइनस करके शॉर्टकट होता है तो कंट्रोल माइनस कर देंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। नाउ यू आर गेटिंग कि भाई देखिए ये आ गया, यहाँ पे ये डेबिट क्रेडिट साथ में आ गया। अब सेम थिंग फॉर दिस यू कैन डू कि भाई यहाँ पे आपने फिल्टर लगाया, टेक्स्ट फिल्टर। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ब्लैंक को हटाना, नहीं, क्योंकि डेबिट वाली डेबिट में जाएगी, क्रेडिट वाली क्रेडिट में जाएगी। देखिए क्रेडिट वाली एंट्री को क्रेडिट में ट्रांसफर करना है, डेबिट वाली को डेबिट में करना है। तो क्या होगा, आप इसको खोलेंगे, टेक्स्ट फिल्टर कंटेन, कंटेन्स व्हाट, डेबिट। अगर डेबिट कंटेन करे तो डेबिट साइड के लिए रेफरेंस कर दें इक्वल टू दिस। मैं वापस से बताता हूं मैंने क्या किया, फिल्टर खोला, टेक्स्ट फिल्टर किया, करा कंटेन्स। भैया कोई भी सेल जो कंटेन करता है क्या, बाई DR, DR क्रेडिट कंटेन करता है तो वो खुल जाए।
फिर मैंने क्या करा, डेबिट साइड में जाके पेस्ट करना है तो इज इक्वल्स टू दिस, फिर कंट्रोल सी, इधर आए कंट्रोल डाउन एरो की, इधर आए कंट्रोल अप एरो की, और ऑल्ट कोलन कंट्रोल वी। आप देखें तो सब चीज वैसी की वैसी आ रही है। और इधर देखें, अगर डेबिट नहीं भाई अक्षत क्रेडिट के लिए तो कंटेंस वापस सी आर क्रेडिट। कैसे करा, यहाँ से ऑल्ट दबा के फिल्टर खोला, टेक्स्ट फिल्टर में जाके कंटेंस में जाके सी आर एंटर दबा दिया तो क्रेडिट, ये क्रेडिट कौन से कॉलम में, यहाँ डालना है, इज इक्वल्स टू दिस, कॉपी, इधर गए कंट्रोल डाउन एरो की, इधर आए कंट्रोल अप, ऑल्ट कोलन और कंट्रोल वी। आपके पुराने कंसेप्ट हो सकता है कि आप लोगों को आता हो ये कि भाई ये हमें देखा हुआ है करा हुआ है, पर ये यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लाई होता है, बहुत यूजफुल है। अब अक्षत हम देखना चाहते हैं ये हो गया है क्या, तो यहाँ से फिल्टर क्लियर कर दो। अब देखिए डेबिट में डेबिट दिख रहा है, क्रेडिट में एक साथ सारे क्रेडिट दिख रहे हैं, डेबिट में पूरा डेबिट दिख रहा है। तो अक्षत ये डिलीट कर देंगे, नहीं अभी नहीं करेंगे। अगर अभी डिलीट करा तो क्या होगा, ये रेफरेंसिंग जीरो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डिलीट करा तो ये जीरो आने लग जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अक्षत क्या करें, वही करना है, पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल स्पेस बार से पूरा कॉलम सिलेक्ट करा, दोनों सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल एफ करा, कंट्रोल एफ नहीं सॉरी कंट्रोल सी करा, कंट्रोल ऑल्ट वी, नाउ वी नीड टू पेस्ट वैल्यूज। तो यहाँ पे वी के नीचे अंडरलाइन दिख रहा था, वी दबा भी सकते हैं या माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और आप इसे ओके दबा दें। मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ कहीं, मनीष जी मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, या सुकेश भैया एम आई ऑडिबल ना, अभी तेज तो नहीं हो रहा है ना कंटेंट, सर ठीक चल रहा है ना सब, हाँ ओके। ये आप देखें, तो अब आप इस कॉलम को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार कंट्रोल माइनस, ये डिलीट भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे यूजफुल डेटा आ गया। अब क्या होगा, डी आर आ रहा है टेक्स्ट, दिस इज नॉट नंबर, डी आर आ रहा है टेक्स्ट और ये नंबर है, ये टेक्स्ट है, डी आर पे फिल्टर नहीं होगा क्योंकि डेबिट दिख रहा है लिखा हुआ। तो क्या करें, रिमूव कर दें। अब एक एक में रिमूव करेंगे क्या, नहीं, वी विल यूज कंट्रोल स्पेस बार। अब क्या होगा, कंट्रोल एफ करेंगे, कंट्रोल एफ से फाइंड एंड रिप्लेस हम लोग यूज करते हैं, रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस करना है, स्पेस दबा के डी आर, बिकॉज यहाँ पे एक एक सेल में आप देखें तो नंबर जहां तक लिखा हुआ है उसके बाद एक स्पेस दी गई है और डेबिट लिखा गया है। तो आपको इसमें कॉमन फंक्शनलिटी क्या होगा, कंट्रोल स्पेस बार दबाइए, कंट्रोल एफ कीजिए, रिप्लेस के लिए क्लिक कीजिए या कंट्रोल टैब दबाइए। कंट्रोल टैब से भी आप इंटर टैब्स को चेंज कर सकते हैं। स्पेस डी आर को किससे रिप्लेस करना है, किसी से भी नहीं। तो ये रिप्लेस ऑल जैसे ही करा, आप देखेंगे 76 एडजस्टमेंट थे ऐसे जिसको उसने रिप्लेस किया है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर दिस साइड, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल एफ, कंट्रोल टैब, डी आर की जगह यहाँ क्या रिप्लेस करना है, सी आर, बिकॉज सी आर इज फॉर क्रेडिट, रिप्लेस ऑल, इट विल रिप्लेस ऑल। अब ये ऐसा आने लग जाएगा। अभी भी आपके पास ये कितनी बार नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टैली से हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट नहीं करा, HTML में एक्सपोर्ट करा, तो कितनी चीजें एज अ टेक्स्ट होती हैं। तो इन्हें वापस नंबर करने के लिए क्या एरर आता है, कॉमा का एरर आता है। आप देखें हमने दोनों का एक साथ सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल स्पेस बार दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ एरो की दबा के एफ को भी सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एफ, रिप्लेस व्हाट, कॉमाज। जो कॉमा होते हैं ना वो टेक्स्ट बना देते हैं, तो कॉमा को आप रिप्लेस ऑल कर दें। देखिए 16 रिप्लेसमेंट उसने करे हैं जहां कॉमा एज अ टेक्स्ट था। बाकी आप देखेंगे तो कॉमा लगा हुआ है, दिस इज नॉट कॉमा, पर अगर मैं यहाँ कॉमा लगा दूंगा ना मैनुअली तो ये टेक्स्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे वो बार बार कॉमा ही दिखेगा, कितनी बार ऐसा होता है। अब आपकी शीट देखिए, ये वाली और ये डिटेल्ड टैली वाली, ये दोनों एक जैसी दिखने लग गई, मतलब ये लाइसेंस्ड वाली ये हो गई और ये अनलाइसेंस्ड वाली हो गई। तो यू नीड नॉट टू परचेज अ लाइसेंस टैली ओनली फॉर यूजिंग दिस थिंग। तो आप मेरे साथ बहुत सारे सीएस ने ये क्वेश्चन करा था, भाई अनलाइसेंस में कैसे निकलेगा, क्या होगा, वो तो एजुकेशनल दिखता है, एजुकेशन लिखा आता है, तो कैसे कर सकते हैं, तो ये ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप सारी चीजें ऐसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, भाई इस वाउचर नंबर की ये जनरल एंट्री पास हुई है बुक्स में, एंड दीज आर द थिंग विच वी नीड टू डू। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हुआ है हमने इसमें क्या क्या यूज करा है। हमने इसमें यूज करा है पेस्ट स्पेशल, कुछ शॉर्टकट फिल्टर्स का उपयोग करा है, हमने कॉमास को टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को नंबर में कैसे कन्वर्ट किया है वो देखा है, फिर हमने फाइंड एंड रिप्लेस यूज करा है, ऑल्ट कोलन को समझा है। आई थिंक सो आई एम ऑडिबल एंड आई एम क्लियर टू एवरीवन। अब अगली शीट है मेन, जहां पे आपकी साइन होती है।
हमारी बैलेंस शीट और P&L। अब क्या होता है, बैलेंस शीट और P&L हम लोग तो बनाते नहीं है, हमारा स्टाफ बनाता है। अब स्टाफ होता है आर्टिकल क्लर्क या जो भी बच्चे होते हैं हमारे, वो लोग बनाते हैं। अब उनसे देखिए गलती कैसी रह गई। असेट्स में ए कैपिटल नहीं है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का P कैपिटल है। भाई नॉन करंट असेट्स का N कैपिटल नहीं है, टोटल का T कैपिटल नहीं है, यहाँ इन्वेंट्री का I कैपिटल नहीं है, और हो सकता है कि भाई उसके ट्रेड रिसीवेबल में V कैपिटल रह गया हो, टाइपिंग मिस्टेक उन्होंने मैनुअली टाइप किया है। तो अब एक एक चीज को पढ़वाएं और एक एक चीज को हम चेक करें, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली फीजेबल फॉर अस। ये सभी लोगों के यहाँ होता है, और प्रिंसिपल्स, मतलब मैं जब आर्टिकलशिप में था तब डिलॉयट में भी ये था, मेरे पापा को भी ये दिक्कत थी कि भाई ये सब प्रॉपर करके लाओ। तो बच्चों पे क्या होता है यार, एक एक सर एक एक लाइन देखते हैं, फिर छोटी गलती तो रह ही जाती है, बेचारे एवरीथिंग गोज हेवाय, क्योंकि ये हमारा मेन प्रेजेंटेशन है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला इन एक्सेल। अगर आपको प्रॉपर चाहिए ना ये, तो आपके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू प्रॉपर। जो काम करना है ना वही नाम है फॉर्मूला का, इज इक्वल्स टू प्रॉपर। अब अगर अपन इज इक्वल्स टू प्रॉपर लिखते हैं ना, तो उसका आप पढ़िए, देखिए मैं जूम करता हूँ इसमें, आपको शायद जूम करेंगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा। इज इक्वल्स टू प्रॉपर, आपको दिख रहा है ये क्या लिख रहा है, कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस। प्रॉपर केस का मतलब क्या है, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड इज अपर केस एंड ऑल द अदर लेटर्स आर इन लोअर केस, और हमें यही केस हमेशा चाहिए होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू प्रॉपर। अब क्या किया, सेल रेफरेंसिंग देना है, किसको प्रॉपर करना है, पर यहाँ पे क्या होता है, गलती होती है, एंटर दब जाता है और फिर ये एरर आ जाता है। ऐसा नहीं होता है, इज इक्वल्स टू प्रॉपर, देन हमें ये फॉर्मूला सिलेक्ट करना है तो टैब दबाएगा। फिर उसके बाद आपको कौन से टेक्स्ट को प्रॉपर केस में करना है, ये इधर लेफ्ट साइड में आए भैया, ये वाले सेल को करना है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आने लग गया, प्रॉपर तरीके से असेट्स लिखा आने लग गया। अब क्या करना है, अक्षर पूरा एक एक जगह लगाएंगे कि नहीं, कंट्रोल C शिफ्ट के साथ आप दबाते जाइए नीचे तक। देखिए मैं पूरी बैलेंस शीट को एक क्लिक में पूरा सही तरीके से फॉर्मेट हो सकती है, आपको लोड बिल्कुल नहीं आएगा इस चीज में। भाई यहाँ तक आया, कंट्रोल V। अब आप इधर लेफ्ट साइड को रेफर कर दीजिए राइट साइड से, देखिए नॉन करंट असेट प्रॉपर आ रहा है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कैपिटल, ये देखिए आप सभी चीज एक तरीके से आने लग गई, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आने लग गई। मैं एक बार और करके बताता हूँ, दिस इज ऑल्सो मेजर थिंग। आप देखें, इज इक्वल्स टू प्रॉपर, इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉपर, टैब दबाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए रेफर करके। यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं देना है, क्योंकि हम सेल नीचे जाएंगे तो वो अगले सेल को प्रॉपर करेगा। एब्सोल्यूट कब देंगे, जब नीचे जाना और इसी को रेफर करना है। प्रॉपर, एंटर, कंट्रोल C, डाउन एरो की से नीचे तक गए भैया, यहाँ तक करना है, इसको कंट्रोल V करा। अक्षर आपकी बात एग्री कर ली है, यहाँ पे सही दिख रहा है, पर वहां कैसे आएगा सर, बहुत सिंपल है सर, ये तो फॉर्मूला है अक्षर, अभी ये फॉर्मूला ये वहां कैसे आएगा। अभी मैंने आपको सिखाया था, देयर इज एन ऑप्शन इन एक्सेल ऑफ पेस्ट स्पेशल। भाई इन फॉर्मूलाज को उठा के एज अ वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे अक्षर, वापस से करते हैं, चलिए। नीचे तक सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, अभी हमने सीखा था कि पूरा हमको एक एक करके शिफ्ट डाउन एरो की नहीं करना है, हमें कंट्रोल डाउन एरो की भी करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के तो भी नीचे तक सिलेक्ट करता है। कंट्रोल C करें, कहाँ जाके पेस्ट करना है भाई, यहाँ करना है। क्या करना है, फॉर्मूला पेस्ट करना है क्या, नहीं, यहाँ पे पेस्ट करना है वैल्यूज। तो वैल्यूज पेस्ट करना है तो क्या मैंने आपको सिखाया था, पेस्ट स्पेशल। आइदर यू कैन गो लाइक दिस, माउस उठा के यहाँ जाएं, एरो की दबाएं, फिर यहाँ दबाएं, नहीं, हमने सीखा है कंट्रोल ऑल्ट V। आप लिखते चलिए, आपको आगे काम आएगा। कंट्रोल ऑल्ट V करा, देन यू विल पेस्ट वैल्यूज। अब आप देखें आपकी पूरी मेन बैलेंस शीट डायरेक्ट फॉर्मेट हो गई है, आपको एक एक चीज को फॉर्मेट नहीं करना पड़ा, आपने पूरा डायरेक्ट आपने पेस्ट कर लिया कि भाई ये सही है, इसमें आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल गलती कर ही नहीं सकता ऐसे केसेस में। क्या एम आई क्लियर, ये चीज सभी को हुई, फास्ट तो नहीं हो गई सुकेश भैया, सुकेश जी फास्ट तो नहीं हुई, एवरीथिंग इज फाइन, शैल आई रिपीट, वापस एक बार करूं, नहीं ना, ठीक है। चलिए, सेम थिंग कैन गो फॉर P&L, कि भाई ये P&L पे करना है, ये यहाँ पे करना है। एक बार आप पूरी बैलेंस शीट में बच्चे अपने जो भी स्टाफ है उसको बोल दीजिए
कि भाई अगले कॉलम में तू प्रॉपर का फॉर्मूला लगा ही लेना। एक बार वो प्रॉपर का फॉर्मूला लगा के वो यहाँ पेस्ट करेगा तो हमारी प्रेजेंटेशन विल लुक एज प्रॉपर कि यार भैया जो चीज है एग्जैक्ट होना चाहिए। अब दूसरी बैलेंस शीट में फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम क्या आती है, कहीं पे 2 डेसिमल है, कहीं पे कोई डेसिमल है। ये तो मैंने पूरा फॉर्मेट कर रखा है, यहाँ पे 3 डेसिमल आ रहे हैं, यहाँ पे राउंडिंग अप में ऐसा हो रहा है, तो कैसे फॉर्मेट करें भाई एक एक चीज को। कहीं पे कॉमास आ रहे हैं, कहीं पे कॉमास नहीं आ रहे हैं। आप देखें यहाँ मैं 1 लाख लिखता हूँ, अंदाजन यहाँ लिख दिया, यहाँ 4,50,000 कर दिया, या 48,000, ये तो टोटल है, चलिए 4,80,000, ये कुछ भी कर दिया। यहाँ कॉमा नहीं आ रहा है, यहाँ 10,000 में कॉमा आ रहा है, यहाँ वो नहीं आ रहा है, डॉट 00 मतलब डेसिमल्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना है, ये कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल स्पेस बार से। आपको दिख रहा होगा ये पूरा एक साथ सिलेक्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दीज आर दी मर्ज्ड सेल्स, दीज आर दी मर्ज्ड सेल्स। अगर ऊपर अगर आपने मर्ज्ड सेल्स कर रखे हैं तो आपको फिर मैनुअली जाके डी कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा और शिफ्ट के साथ ये मतलब आपको मैनुअली इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कंट्रोल स्पेस बार से सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो पूरी टेबल सिलेक्ट कर देगा। तो अगर आपने पूरा सिलेक्ट करा, मैंने आपको वो बताया था, वो कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल्स, कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल खोलने के लिए कंट्रोल 1, इसमें नंबर में गए, हमें सभी चीज अकाउंटिंग में चाहिए, सिंबल नहीं चाहिए, डेसिमल प्लेसेस 2 होना। तो आप देखें अगर आप ऐसा करेंगे तो ओके। अब आप देखें आपके ऐसा कुछ होगा ही नहीं, जहां पे 00 नहीं आना चाहिए वहां डैश आना चाहिए। लोग मैनुअली डैश लगा देते हैं, अगली बार फॉर्मूला ही नहीं लग पाता है क्योंकि वहां 0 होना चाहिए, वो दिखता डैश है पर डैश होता नहीं है। दिस इज लुकिंग एज अ डैश, बट आप यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में यहाँ लिखा है 0, यहाँ पे डैश नहीं लिखा। अगर मैं मैनुअली डैश लगाऊंगा ना तो वो अलग दिखेगा अटपटा, दिस इज टेक्स्ट फंक्शन, दिस इज नॉट अकाउंटिंग। पर अगर मैं 0 लिखता हूँ ना तो वो एज अ डैश दिखना चाहिए। तो ये ऐसे किया जाता है। बहुत लोग परेशान होते हैं यार, मैनुअली डैश लगाते हैं, 0 मत लगाओ, फिर कहीं पे 0 रह जाता है, कहीं पे डैश लग जाता है, वो एरर इसीलिए आता है। एंड सेम थिंग गोज फॉर ई एज वेल। तो ई के लिए करना है तो ई पे जाके मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा मर्ज्ड है। देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल 1। आप कंट्रोल 1 भूल जाएं तो आपको ये नंबर करके दिख रहा है, होम में जाके नंबर करके दिख रहा है जहां डेसिमल्स है, इसके यहाँ पे ये छोटा सा एक एरो दिखता है, देखिए एक ये जरा सा एक कॉमा होता है, इसको भी दबाएंगे तो वही खुलेगा, इसको भी दबाएंगे तो वही खुलेगा। नंबर में जाएं, फिर आप उसे एज एन अकाउंटिंग करिए। आपको कोई सिंबल विम्बल लगाना है आपके तो आप सिंबल लगा सकते हैं। आपको डेसिमल प्लेसेस 2 रखनी है तो ये ओके। अब आप देखें यहाँ पे प्रॉपर चलेगा, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजें प्रॉपर चलेंगी, एज इट इज आएगा। कहीं भी एरर आपको कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि यार आपको इधर उधर हो गया। क्या मैं क्लियर हूं यहाँ पर, है ना? अब उसके बाद आता है बॉर्डर्स का प्रॉब्लम। क्या होता है हमारे यहाँ पे बॉर्डर्स का इशू आता है कि कहीं पे बॉर्डर्स प्रिंट होती हैं, कहीं पे बॉर्डर्स नहीं होती क्योंकि सेल डिलीट करा है, कट करा है, कॉपी करा है, और एट द एंड एट द 11th बार हम लोग इतने हाई में होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी में होते हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि यार बॉर्डर सही नहीं आ रही है। तो आप क्या कीजिए, सिंपल है, मैंने आपको बताया है कि आपको जिस पे बॉर्डर लगानी है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, कंट्रोल 1, ठीक है, कंट्रोल 1 यहाँ पे आपको सारी सोल्यूशन मिल जाएंगे। भाई कुछ लोग होते हैं जिनमें सभी लोग बॉर्डर, सभी जगह बॉर्डर लगती है, कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें सिर्फ कॉलम के आउट बॉर्डर चाहिए होती है बस, मतलब किसी को ऐसी बॉर्डर चाहिए होती है लाइक दिस, बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर्स हमें लगानी है, आउटलाइन लगानी है, और सिंपल टाइप की बॉर्डर हमें लगानी है। ये सिंपल बॉर्डर है, मतलब यहाँ पे ये रही सिंपल बॉर्डर। आप देखेंगे ये आपको दिख रहा है कैसा लग रहा है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। अब आप देखें आपकी बॉर्डर लग गई है यहाँ पे, आप देखिए। फिर क्या करना है आपको, उन्हें बोलना है कि भाई यहाँ से आके इधर तक F4 कर दे, F4 कर दिया। आप इधर से इधर आए, आपको F4 कर दे, F4 कर दिया। लगभग मेजॉरिटी ऑफ बैलेंस शीट ऐसी ही बनती है जिन पे आउटसाइड बॉर्डर्स होती हैं बस। भाई इसे F4 कर दे, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ तक F4 कर दे, और फिर इसको भी F4 कर दे। देखें अब अरे यार इधर बॉर्डर दिख नहीं रही है, अक्षर यहाँ पे भी तो आती है, तो इसे सिलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर लगानी है तो F4 करेंगे तो यहाँ की हट जाएगी।
तो आपको ईच सेल पे लगाना, क्योंकि हमने जो रेंज सिलेक्ट करी उसके आसपास बॉर्डर लगेगी। भाई इधर की बॉर्डर दिख नहीं रही है कि है या नहीं है, तो अगर देखना है तो आप इधर क्या कीजिए, एक कॉलम इंसर्ट कर लीजिए, ऊपर जाइए और इंसर्ट करना है कॉलम। तो आपको यहाँ पे मैनुअली नहीं जाना है, फिर आपको करना है Alt+H+I+C। मैंने आपको बताया ऑल्ट से शॉर्टकट। अब आप देखिए आपकी बैलेंस शीट फॉर्मेटेड दिखती है। भाई यहाँ पे हमें इसके आसपास पूरी बॉर्डर चाहिए, तो क्या कीजिए, यहाँ पे बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर्स कर लीजिए, तो ये आपको बॉर्डर दिख रही है। आपके यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। अब क्या करिए, F4 कीजिए। फिर क्या करना है, टोटल इक्विटी में भी ऐसे ही करवाना है। तो आप बच्चों को अगर ऐसे सिखाएंगे F4 करना, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। अब आप देखिए आपकी बैलेंस शीट को फॉर्मेट होने में 2 मिनट नहीं लगे हमेशा। नहीं तो क्या होता है, कभी इस सेल की बॉर्डर दिखती है, कभी इस सेल की बॉर्डर नहीं दिखती है, कभी तो हमारे जो भी स्टाफ है या जो भी आर्टिकल्स हैं, तो हम उन्हें ये चीज सिखाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में जाएगी, क्योंकि हम इसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं नीचे, और यही हमारा फ्रंट पेज होता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? हमने इसमें क्या क्या सीखा, प्रॉपर फंक्शन, फिर हमने फॉर्मेट सेल्स के थ्रू कॉमा लगाना, जीरो को डैश कैसे दिखाना, प्रॉपर डेसिमल नंबर प्लेसेस सिलेक्ट करना, फिर उसके बाद इनकी बॉर्डरिंग करना। मैंने इसके लिए प्रैक्टिकली नीचे P&L दे रखा है, आपको शेड्यूल्स दे रखे हैं। आप लोग इस पर ट्राई करके देख सकते हैं कि भैया हमारी बॉर्डर सही लग रही है नहीं लग रही है, हमारा प्रेजेंटेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी दूसरा इशू बैलेंस शीट और P&L के साथ ये आता है, जब हमारे बच्चे से प्रिंट करते हैं ना, तो रफ पेजेस की फैक्ट्री कहलाता है सीए का ऑफिस, क्योंकि कभी यहाँ पे इधर ये निकल गया, कभी वो ऊपर हो गया, कभी वो नीचे हो गया, कभी सही नहीं आया। सर एक एक चीज को हम सिलेक्ट करके क्या करते हैं, हमारे बच्चे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+P दबा के प्रिंट करेंगे हमारा सिलेक्शन। भैया हमने जो सिलेक्ट करा है उसे प्रिंट करे, फिर स्केलिंग कर नहीं पाते हैं, A4 पे जाना है कि लेटर पे जाना है, फिर उसको फिट करना है या नहीं करना है। तो इसके पहले अगर हम क्या करें, बच्चों को ये सिखा दें कि भाई आप उसको पहले पेज सेटअप कर लें, पेज सेटअप कर लें। अगली बार में Ctrl+P दबा के प्रिंट होल वर्कबुक भी करोगे ना, तो एक बटन पे आपकी PDF भी बन जाएगी, एक बटन पे आपका प्रिंट भी निकल जाएगा। देखें कैसे। पेज लेआउट में जाएं, हमारे बेसिक ऑफिस ऑटोमेशन हैं। पेज लेआउट में जाके क्या करना है, सबसे पहले हमें पेज साइज सिलेक्ट करना है A4 ही है मेरे, इसमें मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आपके इसमें मार्जिन आप पहले ही सेट कर लेंगे, हमें ये मार्जिन चाहिए। इसके बाद क्या होता है, आपको पेज ब्रेक सेट करना पड़ेंगे कि भाई दिस शुड कम ऑन पेज 1। तो आपने सिलेक्ट करा जो चीज आपको करना है, नाउ कर दीजिए ब्रेक, इंसर्ट, पहले आप रीसेट कर दीजिए सारे पेज ब्रेक, फिर आप कर दीजिए इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे एक पेज ब्रेक लग जाएगा। आप जब भी पेज 1 देखेंगे तो ऐसा ही आएगा, पर अभी भी ये लेआउट आप देखें तो व्यू में जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है। आप देखें पेज ब्रेक प्रीव्यू में भी क्या होता है, सेटिंग्स बदल जाती हैं वक्त के साथ साथ, तो उसके लिए हमें पेज सेटअप करना पड़ता है पेज ब्रेक के साथ साथ। अब आपको यहाँ पे पेज ब्रेक करना है तो इंसर्ट पेज नहीं, पेज लेआउट में जाके पेज ब्रेक। अब यहाँ पे ब्रेक लग गया, देखिए बड़ी लाइन जो डार्क आ रही है ना पूरी, दिस इज फुल एंड फाइनल लाइन, मतलब इसको ऊपर नीचे नहीं होता है। पर क्या हो रहा है, देखिए आप पेज 1 और पेज 2 कैसे आ रहे हैं, पेज 2 ये आ रहा है, दिस कॉलम इज लुकिंग इन पेज 8। उसके लिए क्या कीजिए, पहले इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो दिस विल बी पेज 2, दिस वन। अभी ये यहाँ पे दिक्कत दे रहा है तो इसको यहाँ पे सेट कर दीजिए। फिर अगली बार जब क्या होगा, हम नीचे जब P&L सेट करें तो P&L के लिए हमें यहाँ तक पेज चाहिए भाई, फिर उसके बाद नोट नंबर 7 8 तक ये चाहिए। तो अगली बार क्या होगा, हमारा बच्चा जब कभी भी प्रिंट करने जाएगा और इसको बंद कर दे, वो इसको बंद कर दे। अब आप देखिए मैं Ctrl+P देने जाऊंगा, आप देखिए मैं यहाँ पे ब्रेक लगा रखा है, यहाँ पे सही है। अब मैं अगली बार Ctrl+P करूंगा ना, तो मुझे सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, प्रिंट एंटायर, प्रिंट एक्टिव शीट, उसके बाद नॉर्मल मार्जिन, और मैं प्रिंट कर दूंगा तो देखिए 3 पेजेस ही दिखा रहा है। अब आपको बार बार सेटअप नहीं करना है। देखिए फर्स्ट पेज जो मेरा होना चाहिए वो बैलेंस शीट होना चाहिए, वो पूरी दिख रही है, वो देखिए आप पूरी बैलेंस शीट दिख रही है। फिर सेकंड पेज में आप देखेंगे तो पूरा P&L दिख रहा है, और जब आप थर्ड पेज देखेंगे तो आपको पूरे नोट्स दिख रहे हैं। तो ये क्या होगा,
हमारे रफ पेजेस बनना भी कम होंगे और हमारा लेबरियस काम जो लेबर इंटेंसिव हो जाता है, बार बार पेज सेटअप करना, बार बार सिलेक्ट करके प्रिंट करना, फिर गलती हो जाए, वो मजा नहीं आएगी। क्या यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? प्रिंट सेटअप कैसे किया जाए और बैलेंस शीट की फॉर्मेटिंग में कैसे ध्यान दिया जाए। अब हम आते हैं मेन चीज जो मुझे आपसे आज डिस्कस करना है, दैट इज पाइवट टेबल। पाइवट टेबल से हमारा बहुत यूजफुल टूल है ऑडिट के केस में, क्योंकि हम लोगों को डेटा क्रंचिंग में समरी क्रिएट करना पड़ती है हर चीज की। आप देखें, मैंने आपको एक शीट दे रखी है रॉ डेटा। दिस इज बेसिकली अ डेटा शीट फॉर जीएसटी। देखिए, हमें जीएसटी ऑडिट कर तो लिया है, पर जीएसटी ऑडिट में कितने ही सीएस के पास डॉक्यूमेंटेशन ऐसा मेंटेन्ड नहीं है कि उनकी सेल्स बुक में से हम B2B, B2C, B2CS अलग अलग कर पाए हैं। एग्जम्प्टेड टैक्सेबल अलग से लिखा हुआ है एंड प्रॉपर उस पे आईटीसी का रिवर्सल 42, 43 के हिसाब से करके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड शीट नहीं है। आपने नो डाउट किया, सब सही है, पर वंस अ पीयर रिव्यूअर आस्क यू कि भाई किया कैसे और कैसे निकाला ये, तो हमारे पास प्रॉपर वर्किंग शीट होती नहीं है अवेलेबल। अब आप देखिए, एक डेटा सैंपल शीट है मेरे पास। ये इनवॉइस टाइप दिखा रखा है, क्या है उसका इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस अमाउंट, अदर डिडक्शन, फिर क्या बेचा है, आइटम क्या बेची है। फिर आप देखें इसमें क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट वैल्यू, जीएसटी रेट, टोटल जीएसटी, सीजीएसटी का अमाउंट कितना है, एजीएसटी का अमाउंट कितना है, आईजीएसटी का परसेंट कितना और आईजीएसटी का अमाउंट कितना है। आप देखें, ये शीट को आप जब देखेंगे, आपको ऐसी शीट सभी क्लाइंट से मिलेगी कहीं ना कहीं। पर क्या हुआ है, अभी इसमें मैं श्योर नहीं हूं कि जीएसटीआर 9 में, क्योंकि 3B और 1 2 सालों के खास तौर पे 3B, 1 और बुक्स में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। मतलब इतने सेमिनार्स मैंने जीएसटी ऑडिट पे देखे हैं, उतने सेमिनार्स मैंने किसी भी टॉपिक पे नहीं देखे हैं। 9C पे जितने सेमिनार्स हुए हैं। अब आप देखें, ये शीट को आप इतना समराइज कर सकते हैं। आप ये देखिए, आपके सामने है ये शीट कि भाई B2CS के कितने इनवॉइसेस थे, B2B के कितने थे, इसमें से एग्जम्प्टेड सेल्स कितनी है, ये देखिए, इसमें टैक्सेबल सेल्स कितनी है, इसमें B2B में टैक्सेबल कितनी है, उसका अमाउंट कितना है। आप देखिए, सम ऑफ सीजीएसटी, सम ऑफ एसजीएसटी, और मैं यहाँ टैक्सेबल वैल्यू भी डाल सकता हूँ। अब ये कैसे किया जाए, आप ये देखें, बहुत सिंपल है। देखिए, एक्सेल को यूज करना है मतलब ऑडिट को चुटकियों में करना है। हर चीज मैं आपको बताऊंगा ना, अभी कैश पेमेंट मोर देन 10,000 अगर इतना आसान है तो फिर बात ही क्या है। आप देखें, अभी हमें क्या करना है, जिस शीट को हमें समराइज करना है उसे पूरा सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको फिर सिखाया था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड दबाएं तो बहुत दूर चले गया अक्षर। ये पूरा डेटा नहीं, हमने यहाँ तक काम किया पर मजा नहीं आ रहा। तो आप क्या कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की। अब कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की से आप कहां तक जाएंगे, जहां तक नेक्स्ट आपने लिखा हुआ है। फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। मैनुअली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, 2 बटन दबाने हैं। यहाँ पे खड़े होने के बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, लेफ्ट और डाउन एरो की, आपका पूरा सिलेक्ट हो गया। अभी पाइवट इंसर्ट करना है। पाइवट इंसर्ट होती है इंसर्ट टैब में जाके। कहाँ पे इंसर्ट होती है, इंसर्ट टैब में जाके। मतलब अक्षर फिर माउस उठाना है कि नहीं, ऑल्ट के बाद इंसर्ट के वहां दिख रहा है आपको एन, फिर क्या दिख रहा है पाइवट के लिए वी। आपने जो डेटा रेंज सिलेक्ट करी ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पिकअप कर लेगा, देखिए। और फिर आप क्या करेंगे, ओके। तो आपके सामने ऐसा कुछ शीट खुलेगा कि भाई ये शीट आपके सामने ऐसी खुल रही है। अब मेजर टास्क क्या आता है, हमें समराइज कैसे करना है। पाइवट इंसर्ट तो सभी कर लेंगे आप लोग, पाइवट में बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उसके कॉलम्स और रोज को कैसे डील किया जाए ताकि हमारा डेटा सही से निकल आए। अब आप देखें तो रॉ डेटा के अंदर क्या है, कॉलम्स आप देखें। हमें पहले रिपोर्ट क्या चाहिए, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। भाई हमें रिपोर्ट कैसी चाहिए, जीएसटीआर 9 के अंदर रिपोर्टिंग कैसी है, टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5, आई थिंक सो, आई गेस 9 में ऐसा है कि टैक्सेबल सप्लाईज का डिटेल है और एक एग्जम्प्टेड सप्लाईज का डिटेल है। फिर उसके अंदर B2B है और B2C है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शीट 2 के अंदर जाके सबसे पहले टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, तो कहीं क्या हमारे कॉलम में लिखा है क्या टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। भाई यहाँ पे B2B, B2C, अदर डिडक्शन, आइटम, प्रोडक्ट वैल्यू, टोटल टैक्स, नहीं यहाँ टैक्सेबल और एग्जाम तो कहीं लिखा ही नहीं है कि हम समराइज कैसे करेंगे। भाई देखिए नीचे कहीं भी टैक्सेबल और एग्जाम नहीं लिखा है। अब क्या करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी रेट पे फिल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है।
भाई जिसपे जीएसटी रेट का फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, आप जिसपे डैश है मतलब जिसपे जीएसटी नहीं है, दिस इज व्हाट एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड। तो अब आप क्या करेंगे, इनके आगे लिख देंगे दिस इज एग्जम्प्टेड, मतलब टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड। तो हमारे यहाँ पे एक आ जाना चाहिए भाई, यहाँ पे लिखा होना चाहिए टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड। अब हमें इसी हिसाब से समरी चाहिए। टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे एग्जम्प्टेड, क्योंकि ये जीरो वाले हैं, EXEMPTED। फिर कॉपी करके कंट्रोल डाउन एरो की करके ऊपर करके ऑल्ट कोलन, जरूर कभी भी अगर फिल्टर्स के साथ डील कर रहे हैं और पेस्ट कॉपी कर रहे हैं तो ऑल्ट कोलन को यूज करेंगे, और कंट्रोल V। ये सारे एग्जम्प्टेड हो गए, और बाकी बच्चों को क्या लिखना है, टैक्सेबल। तो वापस क्या करेंगे, जीएसटी रेट के फिल्टर पे जाके जीरो के अलावा वालों को सबको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। ठीक है, कंट्रोल C किया, कंट्रोल डाउन एरो की, कंट्रोल अप, ऑल्ट कोलन, कंट्रोल V, दिस इज नाउ टैक्सेबल। अब आप फिल्टर को खोलेंगे तो आपके सामने एक स्टेटस दिख रहा है। अब इस कॉलम को भले ही डिलीट कर दें, कंट्रोल आएगा, वो कुछ और काम से हमने बना रखा था, वो डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब आपको यहाँ पे पाइवट के अंदर रेंज रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी आपने पाइवट इंसर्ट करा था जब आपने सिलेक्ट नहीं करा था, तो पाइवट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट ये ऊपर हो जाए, हाँ पाइवट की डिजाइन में जाके, नहीं एक मिनट, पाइवट में एनालाइज में जाके चेंज डेटा सोर्स। अभी तक जो डेटा सोर्स था ना हमारा, वो यहाँ से यहाँ तक था, देखिए वो कहाँ तक समराइज कर रहा था, यहाँ तक कर रहा था, पर इसको भी लेना पड़ेगा। तो अब आप क्या कीजिएगा, वापस से कंट्रोल शिफ्ट इधर से सिलेक्ट करके वापस सिलेक्ट कर ले लेंस, या फिर उस पाइवट को डिलीट करके नई पाइवट डाल। अब आपके साथ क्या है, रॉ डेटा है जहां पर लिखा है टैक्सेबल एग्जैक्ट। चलिए सबसे पहला हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे हमें चाहिए फिल्टर सबसे पहले टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट का। तब हम क्या चाहिएगा, इधर रो चाहिए टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट की, भाई ये एग्जाम्प्टेड है, ये टैक्सेबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे डेटा सेट में रॉ डेटा में क्या क्या अवेलेबल है, भाई ये B2C है, B2B है, ये लिख के दिया है क्लाइंट ने। तो रॉ शीट में जाके क्या करेंगे, अगला फिल्टर क्या लगना चाहिए इसके अंदर की भाई इसके बाद सब डिवीजन में बच जाए। तो कौन सा है, वो इनवॉइस टाइप नाम से ऊपर है, रॉ डेटा में देखेंगे तो INV टाइप जो कॉलम है वो इसमें ये दे रखा है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, INV टाइप। अब इसके बाद क्या आने लगा, देखिए एग्जाम्प्टेड में B2C आने लगा, ये आने लगा। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए भैया, इसके आगे मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए। तो वैल्यूज क्या है इसमें, इनवॉइस अमाउंट कितना था, ठीक है, उस पे CGST पर अमाउंट कितना लगा, और SGST अमाउंट कितना लगा, और IGST अमाउंट कितना लगा। भाई हमें 9C के अंदर परसेंटेज वाइज भी देना होता है ना कॉलम में, कि कितने परसेंट का आउटपुट किसका है। तो आप लोग एक और समरी ऐसे बना सकते हैं कि भाई इसके आगे परसेंटेज वाइज भी आने लग जाए। तो आप यहाँ देखिए CGST परसेंटेज वाइज, SGST परसेंटेज वाइज, और IGST परसेंटेज वाइज। IGST मैं केवल उठा के जगह जगह पे डाल रहा हूँ, आप देखिए बहुत इजी है भाई। अब आप देखेंगे एग्जाम्प्टेड के अंदर B2CS के अंदर सब नील रेटेड ही आए हैं क्योंकि एग्जाम्प्टेड था। अब आपके टैक्सेबल के अंदर 2.5% वाले ये लोग थे जिनपे SGST IGST कितना कितना लगा है। IGST तो खैर एक में भी नहीं है। 9% वाला मतलब 18% हो गया ना। अगर ये CGST परसेंट है, SGST परसेंट 9% है तो वो 18% कहलाएगा। तो आप इसके लिए ये हटा भी सकते हैं, या अगर आप अलग से डेटा सेट चाहते हैं तो वो अलग से आप बनाएं। एक पाइवट में अगर हो सकता है मीनिंगफुल ना हो तो 2-3 पाइवट एक ही चीज की इंसर्ट कर लें। अब आप देखिए एक समराइज्ड टेबल बन गई जिससे आपकी 9 और 9C की वर्किंग कितनी आसान हो गई। और अब इससे क्या होता है, जहां पे मल्टीपल ब्रांचेस है, मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन नंबर्स है, एक पैन कार्ड में मल्टीपल नंबर्स हैं, तब क्या होता है हमें सभी को क्लब करके एक बनाना पड़ता है और उसे मैच करना पड़ता है, ये बुक से मैच है या नहीं, इंटर ब्रांचेस को अलग करना है। तो क्या होता है यहाँ पे हमें क्लाइंट्स ने बना के दिया था भाई, ये हमने पाइवट बनाई थी कि इसमें से इतना ब्रांच का है और इतना इसका एक्सटर्नल सेल्स टर्नओवर है। तो हम पाइवट को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आपको उसके आगे की फंक्शनलिटीज में आगे के डेटा में बताता हूँ। एम आई क्लियर टू दिस वन? जहां तक अभी तक हमने करा है ये क्लियर है अभी तक? चलें फिर हम अगला जो करने वाले हैं, कंट्रोल पेज डाउन, दिस इज द मेन वन, कैलकुलेटिंग कैश पेमेंट्स मोर देन 10,000।
भाई ये एक टैली डेटा है, ये कंडेंस्ड फॉर्मेट में निकाला गया है, डिटेल्ड फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि हमें कंडेंस से ही चेक करना है। क्या होता है, क्लाइंट भी समझदार है कि 10,000 का पेमेंट एक साथ इकट्ठा नहीं दिखाना है, पर हम लोगों के साथ क्या होता है, प्रोविजन कहता है कि कैश पेमेंट मोर देन 10,000 इन अ डे टू अ सिंगल पर्सन। क्या होता है, एक दिन में 2 एंट्री कर दी, 5,000, एक को 6,000 की उसी को और अगले 5,000 की उसी को, सेम डे पे, तो भी दिक्कत है। तो हमें समराइज कैसे करना है, डेट वाइज और पार्टी वाइज। अब आप देखिए इसको सिंगल क्लिक में आप किसी से भी, किसी भी कंपनी की किसी भी फॉर्मेट में कैश बुक आपको ऐसी मिल जाएगी कि इस तारीख को इस आदमी को इतने इतने पैसे दिए। अब आप उसके लिए क्या करिए, पाइवट इंसर्ट करना है। तो वही सिंपल सा है, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ये हो गया। अब नाउ यू हैव टू इंसर्ट पाइवट टेबल, पाइवट टेबल इंसर्ट किया। अक्षत अब क्या करना है भैया, सबसे पहले अपने को पर पर्सन पर डे, तो पर पर्सन मतलब पर्टिकुलर, देखिए आप शीट देखें कैश पर्सन की तो आपको दिख जाएगा कि क्या है ये, क्या है ये, पर्टिकुलर्स में नाम लिखे हुए हैं लोगों के, ठीक है। अब हम आए, शीट 3 हमारी पाइवट है, पर्टिकुलर्स में नाम लिखे हैं, ये आ गया किससे दिया। फिर डेट वाइज भी चाहिए, मतलब हमें समरी चाहिए डेट वाइज और नेम वाइज, दोनों को क्लब करते हैं। तो ये कर लिया डेट वाइज, भाई इस आदमी को इस तारीख में क्या दिया, कितने पैसे दिए, मतलब जो हमारा क्रेडिट साइड है, कैश पेमेंट के अंदर हमारा क्रेडिट साइड इज दी मेन थिंग, तो ये आ गया क्रेडिट साइड। अब आपको इसमें काउंट दिख रहा है कि इस आदमी को इस तारीख में कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ, इससे मतलब नहीं है, हमें वैल्यू से मतलब है। तो आप देखिए यहाँ पे राइट एरो की दिख रहा है, वैल्यूज के अंदर, वैल्यूज के अंदर काउंट लिखा आ रहा है, तो आपको राइट एरो की मतलब बॉटम एक एरो दिख रहा है, आप उसे दबाएंगे तो वहां पे वैल्यू फील्ड सेटिंग दिख रहा है। वैल्यू फील्ड सेटिंग को आप कर दीजिए सम, इस आदमी को इस तारीख में सम किया। अब आप देखेंगे ये दिख रहा है। अब आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा करना। बोले यार ये बहुत लंबी शीट बन रही है यार, ये कैसे देखेंगे। आप देखिए मैं इसको फॉर्मेट करते चलता हूँ आपके सामने, ये डेटा पूरा हो गया। अब आपके लिए पाइवट के 2 टूल्स खुले हैं, एनालाइज और डिजाइन। आप देखें आपके ऊपर जहां होम, इंसर्ट, पेज लेआउट लिखा है, वहां पे आपको डिजाइन टैब दिख रहा है, दिख रहा है डिजाइन टैब। अब भाई मेरे को हर जगह सब टोटल नहीं चाहिए कि टोटल मैंने इसको कितना पैसा दिया, तो क्या कीजिए, सब टोटल्स में जाके डू नॉट शो सब टोटल, सब टोटल हट गए। बोले यार अक्षत अगर इसको हम पेस्ट करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अब एक एक को फिल्टर करेंगे तो यहाँ नाम तो दिख ही नहीं रहा किसमें। तो रिपोर्ट लेआउट में देखें, रिपोर्ट लेआउट के अंदर क्या है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, आप इसको क्या कर दीजिए टेबुलर फॉर्म। देखिए तो क्या हो गया, एक कॉलम में नाम आने लग गए, एक कॉलम में डेट्स आने लग गए, एक कॉलम में नाम आने लग गए, एक कॉलम में डेट आने लग गई, और इधर आने लग गए अमाउंट, ठीक है। फिर आप उसके बाद क्या कीजिए, अब आपको इधर हो गया अपना काम। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड तक, कंट्रोल शिफ्ट एंड या फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की यूज करते हुए कॉपी कीजिए। पाइवट से रेंज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेस्ट स्पेशल। आप पाइवट में फॉर्मूला लगाएंगे ना, शीट बड़ी बल्की हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है खुलना। अब आप क्या कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट सिलेक्ट करके कॉपी किया और कंट्रोल ऑल्ट वी, वही पेस्ट स्पेशल, बहुत यूज आता है ये, और ये वैल्यूज बन गई। अब आप देखेंगे तो अब आपको कितना आसान है। बोले अक्षत अभी तक कहाँ हमारी रिपोर्ट जनरेट हुई, मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। आप देखें फिर हमने सिलेक्ट किया, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फिल्टर लगाना है। क्या लगाना है, फिल्टर। तो कंट्रोल शिफ्ट एल, मैंने आपको शॉर्टकट दिया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। नाउ ये फिल्टर लग गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यार डेट तो दिख रही है, मैं अमाउंट पे भी चेक तो लगा लूंगा कि ये मोर देन 10,000 है क्या, पर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देखिए अब मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ, क्या ये अमाउंट मोर देन 10,000 है क्या, दिस इज मोर देन 10,000 फॉल्स, मतलब ये नहीं है। अब मैं नीचे तक जाता हूँ, ऊपर तक आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें तो हम अभी फिल्टर रिमूव करके, अरे कंट्रोल पेज डाउन, नहीं कहाँ, यहाँ पे थे हम, कंट्रोल शिफ्ट एंड कंट्रोल शिफ्ट एल। अब क्या हो रहा है भाई, ये ट्रू है, मतलब देखिए आपकी सिंगल क्लिक पर रिपोर्ट निकल गई कि ये कैश फीस का पेमेंट है, जो ये आपका आपने किया है, ये सारी चीजें 10,000 से ऊपर है सिंगल दिन में। अब आप देखें चेक फीस, फेडरल बैंक अकाउंट में कुछ हुआ है, ये बहुत सारा डेटा है, मतलब एक वेग है, आप उसे ऐसा मत देखिए कि ये सही है या गलत है। अब क्या हो रहा है, आपको ये नहीं पता चल रहा 13-12 का ट्रांजैक्शन किसका है भाई, कौन से हेड का है। तो आपको क्या करना होगा,
सर एक बार म्यूट कर दीजिए, पीछे से आवाज आ रही है बहुत सारी। अरे यहाँ पे DCPL डॉट लाइव LIV। चलिए मैंने म्यूट कर दिया। अब देखें कि इसमें आपको अभी ये दिख नहीं रहा है कि ये तारीख का ट्रांजैक्शन है जरूर, पर किसका है। तो आपको वापस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमने जो वहां पे किया था टैली की फॉर्मेटिंग में। अब आप देखें तो इसके नीचे वही आना चाहिए जो इसके ऊपर आएगा, इसके नीचे वही आना चाहिए जो इसके ऊपर है। सिमिलरली फॉर दिस, तो क्या होगा, पर्टिकुलर में हम फिल्टर लगाएंगे, सिलेक्ट ऑल की जगह हम ब्लैंक्स करेंगे। भाई इसके अंदर इसके ऊपर वाला आना चाहिए ना। तो ये कौन सा सेल है, आप देखिए सेल है A5, इसका सेल कौन सा है, A5। अब आप यहाँ पे कर दिए इक्वल टू A4। भाई जो भी A4 में होगा वो A5 में आएगा ना। फिर हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे नीचे तक जाके, ऑल्ट कोलन दबा के कंट्रोल V। तो आप देखेंगे आपके अंदर जो यहाँ लिखा हुआ है वो कंटिन्यू हो जाएगा, और जहां से वो चेंज होना चाहिए वो जहां पे चेंज हो जाएगा। देखिए बैंक चार्जेस सब जगह आने लग गए। जहां पे बिल्डिंग रिपेयर पहले कैसा था, अब देखिए पहले कैसा था, पहले कैसा था, ऐसा था। अब वो कैसा हो गया, अब आप देखिए आप कैसा होने लग गया, कितना अच्छा दिखने लग गया। अब आपके लिए रिपोर्ट मीनिंगफुल हो गई। अब आप क्या करें, फॉल्स की जगह कर लीजिए केवल ट्रू, और क्लाइंट के साथ बैठ जाइए, भाई ये खाता खोल के बैठ जाओ और ये तारीख की चीजें बता दो, और इन चीजों का रिस्पॉन्स दे दो, क्या ये 10,000 से ज्यादा है या ये 10,000 से कम है। क्या एम आई क्लियर टू थिंक? क्या मैं वापस लूं पूरी तरीके से एक बार और इसी चीज को? आप देखें तो मैंने यहाँ बना रखा है कैश पेमेंट्स के बाद कैश रिसीट और इसकी डुप्लीकेट की चेक। शायद मैंने यहाँ दिया नहीं, आंसर नहीं दिया हुआ है। ये कैश पेमेंट की वर्किंग ऐसे हुई। सिमिलरली आप लोग क्या करेंगे, एक पाइवट वापस इंसर्ट करेंगे कैश रिसीट्स के लिए, कैश रिसीट्स के लिए, और उसमें क्या करेंगे, सिमिलर थिंग्स होंगी, बस जो हमारी यहाँ पे जो चेकिंग होगी, क्या ये मोर देन 10,000 वो हो जाएगी मोर देन 2 लाख रुपीज। हमें सम क्या करना होता है, एक दिन में एक आदमी से हम लोग मैक्सिमम क्या कर पाते हैं, एक दिन की चेकिंग कर लेते हैं। क्या भाई 10,000 से ट्रांजेक्शन कोई बड़ा तो नहीं है, पर वो हो सकता है एक आदमी का बांट के क्लाइंट ने कर रखा हो, और इसके पीछे आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल हो जाएगा कि ये हमने किया हुआ है। क्या एम आई क्लियर है ना? सिमिलरली कैश रिसीट्स के लिए भी करके बताऊंगा एक बार और कि ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा है करने के लिए। एक डुप्लीकेट चेकिंग मुझे सिखानी है आप लोगों को कि भाई हम जब DSTR 1 लगाते हैं और 3B लगाते हैं, हमारे स्टाफ से क्या हो जाता है, एक ही इनवॉइस नंबर 2 बार चढ़ जाता है और एक इनवॉइस नंबर स्किप हो जाता है। और फिर जब हम ऑडिट करने बैठते हैं तब हमें दिक्कत आती है कि भाई हो क्या रहा है, 1 और 3B मैच क्यों नहीं हो रहे हैं, या 1 और बुक्स मैच क्यों नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डुप्लीकेसी का एरर चेक कर सकते हैं, क्या इनमें से इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट है या नहीं है। ठीक है, और हो सकता है कि पार्टी वाइज भी डुप्लीकेट चेक हो सकते हैं और इनवॉइस नंबर वाइज भी डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। होने को बहुत सारी चीजें हमारी एक्सेल पे हो सकती हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि हमारे पास रिकॉर्ड रह जाता है कि हमने क्या किया है। चलिए हम आगे देखें एक बार डुप्लीकेट्स के लिए। शैल आई कंटिन्यू फॉरवर्ड कि एक बार पुराना ब्रशअप कर लें, नहीं आगे देख लेते हैं। चलिए देखें, अब हमें डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर चेक करना है। ये डेटा है सैंपल कि भाई क्या इनमें से कोई डुप्लीकेट इनवॉइस है या नहीं है। अब ये तो एक सैंपल डेटा है जो बहुत छोटा है, लगभग 1400 इनवॉइस का ही डेटा है, पर हमारे जब 1 और 3B और ये साल भर के होते हैं तो इससे कई गुना लंबे चौड़े डेटा होते हैं। दूसरा चेक ये वहां भी काम आता है जब क्लाइंट ने क्या होता है, बुक्स में भी कितनी बार ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिन लोगों की ये प्राइमरी की नहीं होती है इनवॉइस नंबर, तो वो डुप्लीकेट हो सकती है। और ये एरर सॉफ्टवेयर में भी होता है, और सिस्टम ऑडिट भी करना हमारा है क्योंकि वी रिलाई ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमें ये चेक जरूर करना चाहिए। देखिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है डुप्लीकेट हाईलाइट करना, एक डुप्लीकेट पता करना, और तीसरा होता है रिमूव डुप्लीकेट। तीनों अलग अलग तरीके हैं, तीनों किए जा सकते। डुप्लीकेट में हमें क्या करना है, जो मेरा पैटर्न होता है जिससे एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होती है, दैट इज काउंट इफ फंक्शन। क्या फंक्शन का नाम है, काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, उस रेंज में काउंट तभी करता है जब वो एग्जिस्ट करता है। काउंट फंक्शन होता है केवल काउंट करने के लिए,
पर काउंट इफ इज अ लॉजिकल फंक्शन। देखिए काउंट इफ यूज करना बहुत आसान, क्या करना है, इज इक्वल्स टू लगाना तो पड़ेगा ही, काउंट करें, इफ लिखें। अब दिख रहा है काउंट इफ, काउंट इफ दिख रहा है और वो क्या लिख रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। मतलब एक कंडीशन में अगर मीट होता है तभी वो काउंट करता है, ठीक है। काउंट इफ लगाया, अब क्या बोला, एक्सेल इतना सीधा है कि वो खुद ही बोल देता है भैया आप ये बता दो। काउंट इफ के बाद क्या बोल रहा है, रेंज, मतलब कौन सी रेंज में ढूंढना है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हमें ये रेंज ढूंढना है भैया, रेंज ढूंढना है तो यहाँ से यहाँ पे आए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाया। अब यहाँ पे काम आएगा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जो मैंने आपको शुरू में सिखाया था, क्योंकि आप जैसे ही अगले सेल में कॉपी करेंगे रेंज भी खसकना शुरू हो जाएगी और एंड तक आते आते रेंज पूरी खसक ही जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही हमने रेंज सिलेक्ट करा हमें F4 दबाना पड़ेगा। अब ये हो गई रेंज पूरी फिक्स, मतलब ये रेंज आप कितनी भी इधर उधर चले जाओ ये रेंज हमेशा ऐसी रहेगी। रेंज के आगे देखिए पहले डॉलर डॉलर नहीं लिख रहा था जब हमने सिलेक्ट करा था, देखिए मैं बताता हूँ, इज इक्वल्स टू काउंट इफ, टैब दबाया, रेंज हमने जब सिलेक्ट करी थी तो आप फॉर्मूला बार में देखिए B6:B1416 दिख रहा है, और जैसे मैंने F4 दबाया तो सब चीज के आगे डॉलर लग गया, केवल F4 दबाना है। क्या बोल रहा है, इस रेंज में आपको ढूंढना है क्या, वो है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है भाई हमारा, ये है, एंटर दबाया, ये देखिए दिखा रहा है कि ये इनवॉइस नंबर 3 बार आया है, ये इनवॉइस नंबर 3 बार आया है। कंट्रोल C कीजिए, कंट्रोल डाउन एरो की कीजिए, कंट्रोल अप कीजिए, कंट्रोल V कर दीजिए। अब आपके सामने, अब आप बोलेंगे ये तो हो गया, अब फिल्टर लगा दे अक्षत, मैंने हाँ भैया फिल्टर लगा लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट L फिल्टर लगाने के लिए। अब आप यहाँ कीजिए जो 1 के अलावा है, तो ये 2 और 3, मतलब ये इनवॉइसेस 3 बार आप देखें आपके सामने दिख रहा है। ये देखिए मैं इसको लाल कर देता हूँ उदाहरण के लिए, ये देखिए मैं इसके सामने ही दिख रहा है, और ये देखिए ये दिख रहा है। तो एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट हो रही है, भले ही अमाउंट अलग है, भले ही नाम अलग है, पर इनवॉइस नंबर सेम क्यों है। जीएसटी के जो फ्रॉड हो रहे हैं, जीएसटी के जो आईटीसी इधर उधर हो ही जा रही है, वो कैसे होती है, वो इसी तरीके से होती है कि बुक्स में 2-3 इनवॉइसेस एग्जिस्ट करते हैं। आप देखिए ये इनवॉइस नंबर भी 3 बार होगा, ये इनवॉइस नंबर 2 बार होगा, ये एक सैंपल डेटा है, एक्चुअल डेटा नहीं है किसी का भी, पर ये इस तरीके से आपको बहुत हेल्प कर सकता है। एक तो ये तरीका हो गया, क्या ये तरीका समझ में आया? Am I clear with this method? काउंट इफ क्लियर हुआ, कैसे लग रहा है काउंट इफ, मैं आप इस बता देता हूँ, इज इक्वल्स टू काउंट इफ। आपको रटने का कोई आवश्यकता नहीं है, टैब दबा दीजिए, टैब दबाने के बाद क्या बोलता है, भैया रेंज बताइए कहाँ ढूंढना, रेंज मतलब कहाँ देखना है, रेंज बता दीजिए। देखिए दिख रहा है यहाँ रेंज दिखा रहा है, रेंज लिखिए, रेंज रेंज दिखा, इसको हमेशा F4 कीजिएगा, एब्सोल्युटली रेफर कीजिएगा। F4 दबाया, उसने बोला कॉमा लगाइए, बोले क्या ढूंढना है, क्या एक ही चीज ढूंढना है, नहीं, हमें हर सेल के आसपास बदलते जाए ये रेंज, इसीलिए हमें ये क्राइटेरिया ढूंढना है। क्या मैं क्लियर हूँ काउंट? चलिए इसके अलावा भी एक और तरीका है, क्या है तरीका अक्षत, मैं बताता हूँ। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, अभी ये हमारा डेटा फिल्टर्ड है, हम इसे अनफिल्टर कर देते हैं, ये देखिए। अब क्या होगा, हमें जो डेटा हमें ढूंढना है कि डुप्लीकेट्स हैं या नहीं है, तो क्या होगा, एक हमने सेल पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली जिसमें हमें देखना है क्या ये डुप्लीकेट है या नहीं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दिख रहा है आपको होम टैब में, ध्यान दीजिए होम टैब में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है, उसमें दिख रहा है हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल मतलब उन सेल्स को क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। क्या करेगा, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू, जिसमें क्या है डुप्लीकेट, मैं बताता हूँ। पहले रेंज सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद होम टैब में आपको दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स, फिर आप क्या करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज। तो जो जो डुप्लीकेट है ना उनको आप कलर कौन सा करेंगे, लाइट रेड के साथ डार्क रेड टेक्स्ट हो जाए, या आपके साथ जो भी आपको कस्टम फॉर्मेट रखना है आप रख सकते हैं, और ये ओके। तो आपके सामने दिख रहा है जो जो डुप्लीकेटली हुए हैं वो हाईलाइट हो गए। तो आप ये तरीके से आप उसको भी बता के भेज सकते हैं, भाई देख ये भी तरीका है। पर इसमें क्या होगा, आप फिल्टर नहीं लगा पाएंगे आसानी से कि भाई ये कितनी बार आ रहा है और क्यों आ रहा है, तो एक इसके लिए काउंट इफ ज्यादा बेटर रहता है। और एक और तरीका है जिसमें डायरेक्टली डुप्लीकेट डिलीट हो जाते हैं, डायरेक्टली डुप्लीकेट डिलीट हो जाएंगे। सभी लोग एक बार दौर देखिए, हमने 2 तरीके देखे जिससे डुप्लीकेट आइडेंटिफाई हो रहे हैं,
और डिलीट नहीं हो रहे हैं। पर एक्सेल के अंदर एक और तरीका है जिसमें आप डायरेक्टली डुप्लीकेट्स को डिलीट कर सकते हैं। ये बहुत सारी जगह पे काम आता है। आपने रेंज सिलेक्ट करी, आप डेटा में गए, फिर ने क्या करा, रेंज सिलेक्ट करी, डेटा टैब में गए और फिर आपने क्या करा, रिमूव डुप्लीकेट्स। आपको दिख रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर आप इससे दबाएंगे तो जो एक्सपांड सिलेक्शन हमें ओके नहीं, रिमूव डुप्लीकेट हमने करना है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, क्योंकि एक्सपांड करेंगे तो सब जगह चेक करने लगेगा। और रिमूव डुप्लीकेट ओके। अब क्या करा उसने, 1306 यूनिक वैल्यू है और 105 डुप्लीकेट से जो वो डिलीट कर चुका है। आप देखें डायलॉग बॉक्स, और अगर ये हो गया तो ओके। अब इसमें क्या होगा, सब एक एक बार ही दिखेंगे पर एरर पकड़ में नहीं आएगा कि कहाँ हुआ है। तो ये रिमूव डुप्लीकेट्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको काउंट इफ और ये सजेस्ट करूंगा। अब आप बोल सकते हैं, बोले यार ये एरर तो समझ आता है, चलो ढूंढ लिया। अब एक बात बताइए कि जहां पे उस डेटा में क्या कर रखा है बंदे ने कि भाई नाम भी आ रहा है, आपका इनवॉइस नंबर भी आ रहा है और अमाउंट भी, दोनों सेम रिपीट हो रहे हैं। देखिए मैंने एक सैंपल डेटा लिया है जहां पे नाम सेम है, इनवॉइस नंबर सेम है और अमाउंट सेम है। पर यहाँ नाम सेम है, इनवॉइस नंबर सेम है, अमाउंट अलग अलग है। तो हम इसमें कैसे चेक करेंगे सभी एग्जैक्ट डुप्लीकेट है, एक चीज डुप्लीकेट नहीं है, पूरा ही डुप्लीकेट है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू काउंट इफ की जगह काउंट इफ कर दीजिए। काउंट इफ दिख रहा है एक, और एक काउंट इफ दिख रहा है। देखिए काउंट इफ दिख रहा है एक, दूसरा दिख रहा है काउंट इफ। काउंट इफ के अंदर एक कंडीशन और एक क्राइटेरिया रहता है, काउंट इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल क्राइटेरिया। अब काउंट इफ करेंगे, वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप बताइए क्राइटेरिया की रेंज 1, मतलब पहले क्राइटेरिया की पहली रेंज। तो पहले क्राइटेरिया की रेंज पे F4 दबाना है। उसके लिए वो बोल रहा है क्राइटेरिया क्या होगा, ये होगा हमारा क्राइटेरिया। देखिए हमने सेल रेफर कर दिया, ये वाला क्राइटेरिया। फिर वो बोल रहा है क्राइटेरिया 2 की रेंज दीजिए, तो हमने क्राइटेरिया 2 की रेंज दे दी। इसको F4 दबाना है, कॉमा लगा के क्राइटेरिया 2 देना है, क्राइटेरिया 2 दे दिया। कॉमा लगा के क्राइटेरिया 3 की रेंज F4, कॉमा लगा के क्राइटेरिया 3। ऐसे आप एंड सो ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं, मल्टीपल रेंजेस दे सकते हैं, वो पूरे में काउंट करेगा। अगर सभी दूर एक जैसा है तभी काउंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बोले प्रूव करके बताओ, देखिए आप सामने है, मैं आपको कंट्रोल C करके मैंने टेस्ट की थी। अब देखिए श्वेता भरत कोठारी, इनवॉइस नंबर इज 253, अमाउंट इज 779, इट इज काउंटेड 2 टाइम। बट यहाँ पद्मनी टेक्नोलॉजीज करके एक है, यहाँ पे भी पद्मनी लिखा हुआ है, इनवॉइस नंबर भी सेम है पर अमाउंट अलग अलग है, इसलिए उसने कितना काउंट किया है, 1 काउंट किया है। तो दो तरीके से आप एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स दे सकते हैं, और आप एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स रिमूव भी इस रिमूव डुप्लीकेट से कर सकते हैं। पर हमारे प्रोफेशन में हमें रिमूव नहीं करना होता है, हमें फाइंड आउट करके करेक्ट कराना होता है। मेरे ख्याल से आज का बहुत सारा कंटेंट था, पर मुझे टाइम की रिस्ट्रिक्शन के कारण एक डाउट सेशन रखना था। तो सुकेश जी, आई एम कंसोलिडेटिंग माय प्रेजेंटेशन ओवर हियर एंड आई शैल रीब्रश कि हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा था कि एक्सेल का बेसिक लुकआउट कैसा होता है, दूसरा शॉर्टकट कीज कौन सी है और उनको यूज क्यों करना चाहिए, तीसरा हमने रेफरेंसिंग में डिफरेंस देखा था, एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिफरेंसिंग, और कब कौन सी यूज करें। हमने देखा था टैली डेटा जो आता है हमें उसे कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, कैसा दिखता है, और कैसा उसे हमें अपने लिए यूजफुल बनाना है। अगर आपके लाइसेंस टैली है जब तो ठीक है, और नहीं होता है तब भी हम उस चीज को कर सकते हैं। फिर बैलेंस शीट फॉर्मेटिंग जो हमारा मेन था, जिसमें प्रॉपर हो गया फंक्शन, हमने बॉर्डर्स लगाना सीखा, फॉर्मेट करना सीखा, अकाउंटिंग वाली चीजें देखी कि अकाउंटिंग फॉर्मेट में कैसे आए, जीरो डैश कैसे दिखने लगे। फिर हमने देखा था एक पाइवट टेबल जो हमने जीएसटी ऑडिट्स में यूज आना है, हमें कैश पेमेंट्स 48, कैश रिसीव्स 269 एसटी, जिसमें हमें स्पेसिफिक रिपोर्टिंग करना है, उसके अंदर हमें पाइवट टेबल समराइजेशन करना है। पाइवट टेबल के साथ साथ हमने इसके डिजाइन टैब के अंदर जाके देखा था कि इसका लेआउट भी हम बदल सकते हैं। देखिए हमने ये इसमें देखा था अपने कैश पेमेंट्स वाले में कि देखिए हमने यहाँ पे हमने देखा था कि ये डेट अलग आ जाए और अमाउंट अलग आ जाए, पर जब समराइज कर रहे थे पाइवट टेबल में तो एक से एक नीचे आ रहा था।
पर डिजाइन टैब में जाके हमने इसकी सब टोटल हटा सकते हैं, रिपोर्ट का लेआउट चेंज कर सकते हैं, और डुप्लीकेट्स के लिए हमने चेकिंग का रखा था. एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय थैंक्स मतलब टू एवरीवन कि दे मतलब हमारे पास लगभग 25 से 30 पार्टिसिपेंट्स रहे थे, एंड आई वुड बी एबल टू डू अ वैल्यूएबल वर्क फॉर एवरीवन कि हम उसको प्रैक्टिकली यूज कर पाए. So that is why I would like to say my thanks to everyone that they took out their valuable time for me and listening me. Thank you. If anyone has any query, can post it in the chat box, or also I have given personal number of C. Akshay Baheti ji in the chat box. So sir, in future अगर किसी का query होएगा तो comfortably, whenever you are comfortable, you can revert back also. बिल्कुल है ना बिल्कुल. सर, क्योंकि कई चीजें ऐसी रहती है जो हमको अभी ध्यान में है, एट लेटर स्टेजेस ध्यान नहीं आते फॉर्मूलाज, तो मेंबर्स कैन टच. यस यस, नो इश्यूज. अगर किसी का भी क्वेरी है तो यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स, और अगर आप बोलेंगे तो हम वी कैन अनम्यूट यू आल्सो, या आप अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेरी पूछ सकते हैं. इफ एनीवन मेंबर कैन राइट इन द चैट बॉक्स टू अनम्यूट इट्स हिमसेल्फ. मतलब बहुत बार होता है कि हम अटक जाते हैं कि हम ये वर्किंग कैसे करें. अगर आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि यार ये वर्किंग कैसे की जाए, तो वी कैन डिस्कस हियर एंड अभी itself हम डिस्कस कर सकते हैं. मतलब आई टुक लाइक 15 मिनट्स फॉर एवरीवन टू डिस्कस इन द ओपन फोरम. अभी क्या मेंबर्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अटेंडेंस सिर्फ मेंबरशिप नंबर के साथ मार्क कर ले. नो नीड टू राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ. Further sir, any queries? Kaushal sir? नहीं, मेरा यही कहना है कि अभी ये जो शॉर्टकट कीज वगैरह देखी, तो अभी तो अभी मतलब प्रेजेंटली वो सुन लिया, लेकिन जब हम उसको करने जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है. तो अक्षत भाई ये बताइए कि ऐसे समय कि जब ऑन द एट द टाइम ऑफ द प्रैक्टिकलिटी कैन बी कांटेक्ट यू. यस यस, नो इश्यूज सर. मतलब आई विल बी देयर. मतलब अगर मैं हाथों हाथ नहीं कर पाऊंगा तो विद इन एन आवर और सो आई कैन बी अवेलेबल फॉर एवरीवन. वी कैन लीव आवर प्रॉब्लम्स इन योर व्हाट्सएप नंबर. Yes, yes, you sure. can solve it. Yeah, yes, sure. Thank you. This is his WhatsApp number also. मैंने पोस्ट किया 9407407399. So Mr. C. Akshat Baheti can be reached at this number even on WhatsApp also. So I think no queries are there as such in the chat box. Members are again requested to write your membership number in the chat box to post your attendance. We have a great session today. तो टाइम वाज लिमिटेड बिकॉज एक्सेल तो ऐसा है कि आप पूरा एंटायर मैं पूरा कितनी बड़ी भी वर्कशॉप ले ली जाए वो कम पड़ती है इसके ऊपर, कम पड़ती है. और अगेन कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहती है डेफिनेटली जिसपे हम अटकते हैं व्हेन वी आर प्रैक्टिकली डूइंग समथिंग. सो उसको हम रिकॉल कर सकते हैं. मैंने एक एक्सेल जो वर्किंग शीट जो आज आपकी थी वो कॉमन ग्रुप्स में भी शेयर कर दी है, सो दैट अगर आप उसको अपने मेल पे रख के डाउनलोड करें तो उससे आपको फर्स्ट पेज पे सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे. ठीक है ना. सेकेंडली अ वेरी थैंक यू फ्रॉम जबलपुर ब्रांच ऑफ CIRC. हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अक्षत जी. इतने शॉर्ट स्पैन में, मैंने जस्ट 2 दिन पहले आपसे फाइनलाइज हुआ था, इतने शॉर्ट स्पैन में आपने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया. डेफिनेटली वी वुड लाइक टू कंटिन्यू ऑन दिस एक्सेल वर्कशॉप. इसका पार्ट 2 वर्जन भी हम कभी ना कभी इसमें करेंगे ताकि इसमें एडवांस चीजें जो है वो और हम सीख सकें. सो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर अभी. मतलब मैंने देख वी लुकअप इज पेंडिंग. अभी टाइम का कांस्टेंट था तो मैंने बहुत सारी चीजों को अभी कवर नहीं कर पाया हूँ, पर अगर आगे रहता है तो अपन वी कैन हैव ओवर ट्रेनिंग देयर. थैंक यू वेरी मच सर. जबलपुर ब्रांच की तरफ से और सारे मेंबर्स जो प्रेजेंट है जिनने ये वर्कशॉप देखा, इवन वी हैव रिकॉर्डेड दिस सेशन, तो हम इसको अपने YouTube चैनल पे भी पोस्ट करेंगे. सो दोज मेंबर्स हु हैवंट अटेंडेड इट विल आल्सो सी एंड दे विल डेफिनेटली लर्न समथिंग. तो इसी के साथ हम आज का सेशन क्लोज करते हैं सर. थैंक यू वेरी मच सर. ओवर टू मनीष कौशल. मैं एक और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आज के मॉडरेटर सी आशुतोष ददरिया जी, जिनने पूरे सेशन का टेक्निकलिटी पूरा हैंडल किया. ओवर टू मनीष कौशल जी फॉर हिज वर्ड्स. अक्षत भाई बहुत बहुत धन्यवाद. और जस्ट हम लोग वैसे एक्सेल में वर्क रोज ही करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेल का तो चोरी दमन का नाता है, लेकिन कितना यूजफुल हम उसको और ज़्यादा कर सकते हैं, इतना पावर पैक है ये कि धीरे धीरे हम लोग जान रहे हैं. और स्पेशली हमारे जो यंग मेंबर्स हैं
वो तो काफ़ी ल्यूसिडली उसको करते हैं, लेकिन जो थोड़ी सीनियर हैं उनको इतनी डिटेल में जानकारी नहीं होती है। हम कोशिश करेंगे कि आगे जो सीनियर मेंबर्स हैं वो काफ़ी और ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनका बढ़े। फिर भी यंग मेंबर्स से भी नहीं हो पाती, उनके लिए वाक़ई में ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और आपकी जो विषय के में जो आपकी अधिकार है, वो देख के हम लोग को बहुत खुशी हुई और वाक़ई आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे सहयोग लेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you, sir. We close our session for today. Thank you very much, Akshat Bhaiti ji, and all the members listening. Daljit Singh ji दिख रहे हैं शेडोल से, आकर्ष जैन जबलपुर से, और भी बहुत सारे members ने अटेंड किया। चेतन कपूर, संचित अग्रवाल, राकेश खंडेलवाल जी, धीरज अग्रवाल जी, मंडला से मुकेश जैन, बहुत सारे members ने, not even from जबलपुर। ये एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि not even the members who are located at distant places, they are also attending and taking benefit of it. हमको बाहर से easily speakers मिल रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज ट्रैवल प्लान के चक्कर में उनको एक दिन ट्रैवल करना, फिर रिटर्न जाना, और लॉट ऑफ थिंग्स हैड टू बी arranged before that. So that this is the benefit of virtual platform. Thank you very much. Again, we look forward to see you in future. Thank you very much. Hereby we close the session. Thank you, and take care in the COVID area. Thank you. Okay. Thank you.